Hello everyone. All right. Hello everyone. How are you all? So, okay, a lot of people are joining. Okay, am I audible? Just write yes, Y, or N. I'll just get the feedback. Am I audible to everyone? Am I visible? Am I audible? Please just write yes or no. That's all. Okay, Gargi. Thank you so much. Thank you, Gargi. Okay, okay. Thank you, Gargi. Okay. I hope everyone is doing fine. Everyone is doing good. Um, it's the afternoon time. So, okay, how many people have joined by now? Okay. Oh, a lot. Okay. Great, great, great. Hello to everyone. This is Dr. Shikha Chaturvedi, and we are going to आज के डेट में हम लोग we are going to learn about acne and the major very popular actually में very popular treatment for the acne that usually people try to do it and sometimes they win, sometimes they fail off. So we'll cover up basic things about it. Okay. All right. I think the team is sending out the message to the people regarding the class. Okay, that's the reason. Okay, the people are coming up. See, it's the afternoon time. You all are at your own comfort, and we are here to help you out. So, Hindi English mix में चलेगा ना सबको? Everyone is comfortable. There would be a mix Hindi English दोनों चीजें रहेंगी. So, is it okay with everyone now? You're all fine with mix of the language, correct? बिकॉज हम दोनों रखेंगे. हो सकता है कुछ चीजें इंग्लिश में आए, कुछ चीजें हिंदी में, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि दोनों चीजों को इक्वली हम डिवाइड करके एंड आई टॉक इन बोथ द लैंग्वेज इजिली, ताकि हर किसी को समझ आए. ठीक है, आसानी से. नाउ सो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड यस सी दो चीजें before starting the whole presentation and before starting the whole process and the whole seminar. First thing first, I would like, अगर आपके आसपास में नोटबुक है या आप अपने मोबाइल फोन में ही नोट्स लेना चाह रहे हैं, मे बी हो सकता है कुछ ऐसी चीजें या सर्टेन काइंड ऑफ वर्ड्स या मे बी सर्टेन काइंड ऑफ आई से टिप्स एंड ट्रिक्स या चीजें हो सकता है प्रेजेंटेशन में आपको उतना ना मिले. Maybe it just comes out from my mouth just subconsciously, or maybe here. So just keep a basic notepad, एक पेन रख लीजिए, करेक्ट, एंड अपने आसपास के अराउंड में just keep yourself a little, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रखेंगे खुद को. 1.5 से 2 घंटे की बात है, just a matter of 1.5 to 2 hour, जिसमें we are going to discuss a very very important and a very I'll say very interesting topic today. So it's just my basic request to you all. And also one more, please आपके जो भी questions हो, whatever questions you have during the lecture, बिफोर, अभी भी होंगे, कई लोगों के पास अभी भी बहुत सारे क्वेरीज क्वेश्चंस बहुत कुछ होगा कि अच्छा ये बता दीजिए, इसका बता दीजिए, ऐसे बता दीजिए. एवरीथिंग विल बी देयर. सो इट वुड बी माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज उनको ना एंड ऑफ द सेशंस के लिए संभाल के रखना. नोट कर लो, आप नोट डाउन कर लो, अच्छा मुझे ये क्वेश्चन पूछना है या आई हैव टू आस्क दिस अप. सो इट वुड बी माय रिक्वेस्ट, प्लीज उसको एंड ऑफ द सेशंस के लिए हम लोग संभाल के रखेंगे. एंड वील आई विल टेक एवरी क्वेश्चन, सो डोंट वरी अबाउट इट. हाफ एन आवर कंप्लीटली हम सिर्फ क्वेश्चंस के लिए डेडिकेट करेंगे. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट. विल डेडिकेट द होल लास्ट हाफ एन आवर टू 15 मिनट, जो भी हमारे पास टाइम एक रहेगा, हम कंप्लीट सिर्फ क्वेश्चंस के लिए डेडिकेट करेंगे. ओके, सो कम गाइज, लेट्स बिगिन विद द टुडेज ट्रीटमेंट. Today's basically the very cool topic
interesting also, a little complicated also, and at the same time very easy to treat, at the same time very difficult to treat. Okay, so yes, it is a kind of condition. I basically call it as a disease. Reason because it is not just कि ये सिर्फ ना एक बाहरी प्रॉब्लम नहीं है, अंदरूनी भी है, एंड ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा कई बार बहुत हैवी एंड बहुत ज्यादा वास्ट हो जाती है कि इसको ट्रीट करना इट बिकम सो डिफिकल्ट कि हमें समझ नहीं आता कि क्या किया जाए. तो उसके अंदर में क्या होता है, टॉपिकल चीजें भी आप यूज करते हो, स्किन केयर भी यूज करते हो, कई बार मेडिसिन देनी पड़ती हैं, कई बार बहुत ज्यादा इंट्रीक आपको ट्रीटमेंट्स लेने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा हैवी ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं, एंड यस सो स्टिल यू कैन फेल एट इट. सो सी आई डो नॉट माइंड, मेरे को उस चीज को मानने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम या उस चीज को मानने में ना आई एम नॉट एट ऑल गिल्टी एट ऑल कि I am also a human. I'm a doctor. I'm learning. I'm on a journey. I am just sharing what I have learned in my past experience. I'm just sharing with you all guys what can be done. And I'm just sharing all the kind of guidelines that you can follow to at least achieve maximum benefit and the maximum result potential. So in this today's whole lecture, it is going to be kind of a discussion, experience sharing and a basic discussion about कि किस तरीके से ये कितना बड़ा मतलब it has become a vast potential kind of a problem कि आजकल हर दूसरे बंदे में, हर दूसरी बंदी में मतलब every second person ये आपको दिख जाता है ना. एंड इसको ट्रीट करने के लिए ना जो इनिशियल कई बार होती है, हम बहुत बेसिक चीजों से स्टार्ट करना चाह रहे हैं बिकॉज हैवी चीजें या फिर बहुत एक्सेसिव या इंट्रीगिंग ट्रीटमेंट करने में ना हो सकता है हमें डर लगता हो. ठीक है, मुझे भी था, आई ऑल्सो हैड दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग. हम उस चीज को लेके बहुत श्योर नहीं हो, हमें उन चीजों को लेके बहुत ज्यादा क्लियरिंग नहीं हो कि अच्छा ये करना भी है कि नहीं करना, ये इसमें पर्टिकुलर हम कर सकते हैं या नहीं ट्रीटमेंट में. तो वो सारी चीजों को विल डिस्कस इट आउट. Okay, so topic for today is acne versus acids. Very interesting. See, so acne is something, it's a very, I'll say, easy to treat problem. At the same time, very difficult to treat problem as well. So it's a disease, a problem, a condition, an aesthetic issue, a confidence issue as well. जिसको आप acids के through, acids basic name goes for chemical peels. उनके थ्रू आप किस तरीके से इसको ट्रीट आउट कर सकते हो एंड हेल्प कर सकते हो क्लाइंट को टू रीगेन देयर कॉन्फिडेंस, टू रीगेन देयर स्किन एंड टू रीगेन देयर ट्रस्ट बैक अगेन ऑन देमसेल्फ. एंड इट इज अ ब्रिलियंट वे. बहुत ही सटल तरीका है, बहुत इजी तरीका है, मेजरली वेरी पॉकेट फ्रेंडली भी है. यस इट इज. कई लोग सोच रहे होंगे अरे केमिकल पील कैसे पॉकेट फ्रेंडली हो गया भाई. So yes, it is. It is quite pocket friendly comparative to the other treatments. जब हम comparisons करते हैं, तो comparative to the other treatment, it becomes a little pocket friendly as well. Okay. So let me share you with the just a second. Okay. Fine. So everyone can see the presentation. So can you see the presentation if everyone can see it? Yes or no? Just a quick yes or no. Can everyone see the presentation? Okay, got it. Okay, thank you, Gargi. Now talking about when I get your point. Okay, thank you, Aarti. Thank you so much. So when we are talking about the acids and acne, the first thing that we need to discuss and majorly talk about is basically the acne. Okay, so what are acne, how they form up, and how they basically come up on the surface. And see, majorly you need to understand one thing, that acne is something, it just doesn't happen only on the face. Acne basically can happen any part of the body, on the face, on the chest region, on the shoulders, on the back region, on the buttock areas, on the leg region, arms, underarm region, everywhere. But yes, the types can be different. Okay. So what is basically an acne? So acne is basically a skin condition which occurs because when the hair follicles, so these hair follicles, if you see it over here,
these hair follicles get entrapped. Here, these hair follicles get clogged or entrapped with excess oil production. Excess oil production from where? From this gland, which is called as sebaceous gland. So यहाँ से जब ऑयल सिक्रीशन स्टार्ट होता है, वो इतनी हैवी क्वांटिटी में बन रहा हो, एक्सेस क्वांटिटी में बन रहा हो, एंड बाहर की धूल मिट्टी एंड डस्ट एंड डेड स्किन ना गिरने की वजह से जो आपके स्किन के टिश्यूज हैं उसकी वजह से भी यहाँ इस एरिया में हो जाए क्लॉगिंग. तो जब यहाँ पे क्लॉगिंग हो जाएगी, वेयर यहाँ पे जब चीजें ट्रैप हो जाएंगी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड से ऑयल कंटिन्यूस बन रहा है, हेयर भी है, हेयर यहाँ पे एंट्रैप हो गया, डस्ट एंड उसकी वजह से पूरा पोर क्लॉग हो गया. एंड नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट? द नेक्स्ट थिंग कम्स कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, इस एरिया का जो एटमॉस्फेयर है वो हो गया एनारोबिक, मतलब विदाउट ऑक्सीजन. तो जब भी इस तरीके का कंडीशन क्रिएट होता है जहां पे ऑक्सीजन नहीं हो, वहां पे ऐसे बैक्टीरिया जन्म लेते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, वो एनारोबिक कंडीशन में बहुत अच्छे से फलते फूलते हैं, जिनमें से हमारा एक्ने का बैक्टीरिया, जिसे हम प्रोपिनियोबैक्टीरियम बोलते हैं या पी एक्ने आप बोल सकते हैं, वो यहाँ पे जन्म लेता है. एंड वो फिर यहाँ पे स्टार्ट करता है अपना बेसिकली सारी चीजों को खराब करना. तो अब यहाँ पे अगर कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसको खाना चाहिए. सो व्हेन दे वांट टू ईट, तो यहाँ पर जो सीबम आ रहा है वो उसको खाएगा, सराउंडिंग सेल टिश्यूज को खाएगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बेसिकली एक तरीके से इंजरी क्रिएट होगी. एंड दैट इंजरी ट्रिगर करती है आपकी खुद की बॉडी को हीलिंग के लिए. और जब वो हीलिंग ट्रिगर होता है, उसकी वजह से आपके बॉडी के सेल्स, जिन्हें हम WBC बोलते हैं, वो रन करते हैं यहाँ पर. तो जब वो यहाँ रन करते हैं तो उसमें न्यूट्रोफिल्स आ गए, मैक्रोफेजेस आ गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBC सेल्स आते हैं जो यहाँ आके उनको फाइट करने की कोशिश करते हैं उन बैक्टीरियाज के साथ. कई बार वो खुद से भी सेटल डाउन हो जाता है, बट मेनी टाइम इट इज वेरी अग्रेसिव. तो आपकी बॉडी उसको उतना अच्छे से फाइट नहीं कर पाती, इम्यून सिस्टम उतने अच्छे से रिकवर नहीं कर पाता. एंड व्हाट हैपेंस, बिकॉज वो हीलिंग हो रहा है एंड एक तरफ से डैमेज हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन एक इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है, बॉडी इन्फ्लेम हो जाती है. इन्फ्लेमेशन का सिंगल मीनिंग अगर हम समझें, पेन होगा, रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, एंड सेम टाइम पे पस फॉर्मेशन होगा. ठीक है, तो जब ये सारे साइंस एक साथ एक जगह पे कहीं पे प्रेजेंट होते हैं, उस एरिया में बेसिकली इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो रहा है. ओके, तो इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको ये सारे साइंस सिम्टम्स दिखते हैं. एंड बिकॉज वो स्वेलिंग की वजह से, पस फॉर्मेशन की वजह से, पेन की वजह से, रेडनेस की वजह से, एंड वो बैक्टीरिया की वजह से वहां पर आपको एक दिखता है पिंपल, जो स्किन सरफेस से उठकर ऊपर आ गया है. एंड इट इज वेरी वेरी पेनफुल एट पॉइंट्स ऑफ टाइम. अब कई लोगों के इसमें क्वेरी क्वेश्चन होगा, मैम कई बार होते हैं पिंपल्स बहुत पेनफुल नहीं होते हैं, दे आर नॉट वेरी पेनफुल. ओके, दे आर लाइक कि ठीक है बहुत पेनफुल नहीं है बट स्टिल अवेलेबल है. तो इन दैट कंडीशन जो आपका बॉडी की इम्यूनिटी है एंड द बैक, दे आर फाइटिंग कॉन्स्टेंटली एंड इट इज ट्राइंग टू टेपर द थिंग्स डाउन. तो अभी तक वहां पे ऐसी कंडीशन डेवलप नहीं हुई है कि जहां पर डेड सेल्स, खत्म होते हुए सेल्स पस में कन्वर्ट हो रहे हैं, या पसिंग, या इन द सेंस बेसिकली कहें तो गार्बेज क्रिएट हो रहा है. तो वो क्योंकि क्रिएट नहीं हुआ है, तो बेसिक आपको चीजें दिखती कि हाँ हल्का फुल्का स्वेलिंग दिखेगा, रेडनेस दिखेगी, एंड आपको स्लाइट पेन एक फील होगा, बट देयर वहां पे पस नहीं होगा, वहां पे बहुत एक्सट्रीम स्वेलिंग नहीं होगी, बहुत एक्सट्रीम है वो नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा. सो इस टाइप के भी पिंपल्स होते हैं. सिमिलरली ऐसे भी पिंपल्स होते हैं जो बहुत अंदर, मतलब इनसाइड वो बढ़ते जाते हैं एंड स्टार्ट फॉर्मिंग, अंदर के तरफ में दे स्टार्ट फॉर्मिंग ए नोड्यूल, मतलब इतने रिजिड हो जाते हैं, इतने ज्यादा हेफ्टी हो जाते हैं कि अंदर के तरफ में गांठ जैसा बना लेते हैं. करेक्ट, और उस तरीके के जो पिंपल्स हैं उनको ट्रीट करना इट बिकम्स अ वेरी बिग चैलेंज एज वेल, क्योंकि ऊपरी सतह पे वो कम दिख रहे हैं बट अंदर से वो बहुत ज्यादा हेवी एंड हेक्टिक हो गए हैं, एंड आपको उनको ट्रीट करना बिकम्स अ चैलेंज फॉर यू. करेक्ट. तो इसी से बेसिकली इफ वी, जो हमने अभी तक जो भी कॉन्वर्जेशन की कि एक्ने कैसे बनता है, उसी को जस्ट एक सिंपल डायग्रामेटिक फॉर्म में हमने यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि किस तरीके से बेसिक एक आपका एक नॉर्मल आपका ये स्ट्रक्चर है कि हमारे पास हेयर है, हेयर का फॉलिकल है, ठीक है, यहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड है, यहाँ पे हमारे पास मसल है, एरेक्टर पिलाई मसल है, और ये हेयर है. अब आप देखोगे यहाँ पे ये जो क्लॉगिंग हो रही है, ये दिस,
अ स्मॉल येलो पॉइंट ओवर हियर, इसकी वजह से यहाँ पे क्लॉगिंग क्रिएट हुई, क्योंकि वो क्लॉग हो गया है, यहाँ से कंटिन्यूअस सीबम, जो कंटिन्यूअस ऑयल है वो तो बन ही रहा है, उसमें कोई ब्रेकेज नहीं है, उसमें कोई ब्रेक नहीं है, उसकी वजह से यहाँ पर स्टार्ट हो गया एक्यूमुलेशन एंड एरिया क्रिएट हो गया एनारोबिक, जिसकी वजह से बैक्टीरिया प्रोलिफरेशन बढ़ गया, बैक्टीरिया जन्म लेने लगे, बैक्टीरिया बढ़ने लगे, एंड दैट इज प्रोपिनोबैक्टीरियम बैक्टीरिया। ओके, सो दैट इज देयर, वो यहाँ पे बढ़ रहा है। उसके बाद में उसने वहां के आसपास के सेल्स को खाना शुरू किया, ये सीबम को खाना शुरू किया। तो जो भी चीज को आप खाओगे तो यू हैव टू एक्सक्रीट इट आउट। सो वहां पे जो भी एरियाज हैं दैट स्टार्ट गेटिंग डैमेजिंग, डेड बॉडीज क्रिएट आउट होने लगी, द थिंग्स स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग, द बॉडी रन टुवर्ड्स इट। तो वहां पे जब बॉडी के सेल्स भागते हैं तो उसकी वजह से हीलिंग जो ट्रिगर होती है, बिकॉज ऑफ दैट हीलिंग ट्रिगरिंग your body starts sensing out कि inflammation develop out होता है, and you start seeing redness, swelling, pain and pus formation, and that is how the pimple occurs, या पिंपल जन्म लेते हैं। अब हम different types of acne की अगर हम बात करें, we are talking about different types of acne. The number one, we starts from comedones. Okay, we always starts and we always goes up from comedones, हमेशा comedones से शुरू होगा। तो कॉमेडोन्स इज बेसिकली ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स। ओके, तो क्या हुआ ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स? अब देखो, जब भी आपका पोर क्लॉग होगा, ठीक है, तो वो जो क्लॉग्ड एरिया है वो अगर बाहर के एनवायरनमेंट के साथ टच में है, ओके, कि बाहर के एनवायरनमेंट के साथ में वो क्लॉग्ड एरिया टच में है, तो क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा एनवायरनमेंट की वजह से, एनवायरमेंटल एयर एंड ऑक्सीजन की वजह से, उसकी वजह से वो ब्लैक दिखता है। So that is why they are called as blackheads. Similarly, जब वो clogged area बाहर के environment के साथ connectivity में नहीं आता, एक single skin layer ये चीजें उसके ऊपर cover की हुई है, उसको it is covered up and do not come in contact with the external environment, ऐसे में जो clogged area है वो white नजर आता है, so they are called as the whiteheads. ओके, ये बेसिक डिफरेंस है ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स। क्यों उनका कलर ब्लैक या व्हाइट क्यों दिखता है? क्योंकि एनवायरनमेंट के जो भी टच में रहेगा वो ब्लैक दिखता है ऑक्सीडेशन की वजह से, एंड जो भी नहीं है वो व्हाइट दिख रहा है। ओके, सो दैट इज व्हाई हम स्टार्ट जब भी करते हैं टाइप्स ऑफ एक्ने में, वी स्टार्ट फ्रॉम कॉमेडॉन्स। स्पेशली आपको दिखेगा चीक, आपको दिखेगा नोज एरिया पे, चिन एरिया पे, कई लोगों को बैक में, मतलब बैक एरिया पे भी रहते हैं ब्लैक हेड्स काफी ज्यादा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास पैप्यूल्स। पैप्यूल्स बेसिकली रेज्ड एलिवेटेड एरियाज हैं जो बहुत छोटे छोटे बम्प्स जैसे दिखते हैं। ये रेड इन कलर होते हैं, ठीक है, रेज्ड होते हैं, आसपास की स्किन के मुकाबले थोड़े से रेज्ड होंगे, स्लाइट पेनफुल होगा बट बहुत ज्यादा नहीं, इन्हें हम पैप्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं पुस्ट्यूल्स। ओके, डिफरेंस बिटवीन पैप्यूल्स एंड पुस्ट्यूल्स सिर्फ एक चीज है, पुस्ट्यूल के सेंटर में, एकदम सेंटर में ना, एक व्हाइट कलर का डॉट आपको दिखेगा विच इज पस बेसिकली। ठीक है, तो जब वो पैप्यूल है, उस पैप्यूल के सेंटर में जब वो पस का डॉट आ जाता है तो इट कन्वर्ट्स और इट इज कॉल्ड एज अ पुस्ट्यूल। नेक्स्ट कम्स एज नोड्यूल्स। आप देखोगे नोज के ऊपर ना कैसे गठान जैसी दिख रही है, कई बार पेनफुल होती है, कई बार नहीं होती है, इट कुड बी एनीथिंग एज पर, बट इफ यू सी बिलो, जो हम सिस्ट की बात करें, सिस्टिक, इट इज वेरी पेनफुल, filled with pus, very bigger in size, maybe a lot of number, and it basically swells a lot, and इसमें pus भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है। दो ऐसे बेसिकली जब हम, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टू द पीपल जो अपना क्लिनिक रन कर रहे हैं या जो अपना सेटअप रन कर रहे हैं, हमसे मेजर प्रॉब्लम या इशू कहाँ होता है कि व्हाट वी ट्राई टू डू, वी ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एवरी पिंपल। हम हर पिंपल को ना एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें पस भरा है, इसको एक्सट्रैक्ट कर दो, ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स हैं, एक्सट्रैक्ट कर लो, सिस्ट हो रहा है, सारा पस एक्सट्रैक्ट कर लो। नो, कई बार होता है, मेनी ऑफ द टाइम्स वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हर एक पिंपल एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता, या हर एक पिंपल एक्सट्रैक्शन के लिए नहीं होता। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स, ओके फाइन, टू सम एक्सटेंट आप उसको डेफिनेटली कर सकते हो, रिगार्डलेस कि उसकी जो स्किन है, सामने वाले बंदे की जो स्किन है या टाइप ऑफ स्किन है वो कैसी है या किस टाइप में है। इफ इट इज वेरी सेंसिटिव, अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली सेंसिटिव है, वेरी फ्रिजाइल है, तो आप ऐसे में ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स को भी रिमूव ऑफ नहीं करते हो। यू ट्राई टू गिव देम स्किन केयर के अंदर में आप ऐसा प्रोडक्ट देते हो कि उनके क्लॉग को अनक्लॉग कर सको। ओके, वो क्या प्रोडक्ट है विल डिस्कस फर्दर। तो आप इस तरीके
के प्रोडक्ट्स उन्हें देते हो कि अनक्लॉगिंग हो सके, धीरे धीरे ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स बनना ही कम हो जाए। ठीक है, आप बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं करते उन चीजों को। एंड सेकेंडली, सिस्टिक जैसे जो भी एक्ने है जिनमें सिस्ट बन रहा है, विच आर सिस्टिक, प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, नेवर ट्राई टू एक्सट्रैक्ट अ सिस्टिक एक्ने। प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। रीजन, क्योंकि सिस्टिक एक्ने को वी हैव सीन इट इन मल्टीपल केसेस। जब जब भी सिस्टिक एक्ने को बहुत ज्यादा फोर्स में या बहुत ज्यादा ट्राई किया गया एक्सट्रैक्ट आउट करने का, ऐसी सिचुएशन में द थिंग्स हैव गॉट वर्सन। स्किन खराब हुई है, मार्क्स, स्कार्स, पता नहीं क्या क्या चीजें हो गई, एट द सेम टाइम स्प्रेड भी हुआ है। एक्ने एक था, सिस्टिक एक्ने एक था, आपने उसको पंच आउट करने की, आपने उसको एक्सट्रैक्ट आउट करने की कोशिश की, एंड इट जस्ट गॉट फ्लेयर्ड अप, वो फ्लेयर हो गया एंड स्प्रेड आउट हो गया। सो इट्स अ बेसिक courtesy and basic things that you need to understand with the acne कि हर एक्ने एक्सट्रैक्ट करने के लिए नहीं बना है। नाउ, ये कुछ एक्ने के टाइप्स है, इनको आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। रीजन, बिकॉज ये नॉर्मल एक्नेज नहीं है, they are very severe form of acne, or you can say not acne but different kind of problems, or as the skin conditions. Okay, इनको आपको टच आउट नहीं करना है विद एनी एसिड से, तो बिल्कुल नहीं करना है। कई लोग होते हैं, उनको लगता है कि अच्छा ये तो सिस्टिक ही है, स्पेशली ये सिस्टिक ही तो है, पील कर देते हैं, केमिकल पील, एकदम बढ़िया हो जाएगा। ये पीपल सी दिस एज अ पुस्ट्यूल, ओके, पील कर देते हैं, ओके हो जाएगा। नो, नथिंग, ऐसे वर्क नहीं करता है। These are the kind of skin problem in the form of acne जिन्हें आपको टच नहीं करना है। Number one, as we are talking about, that is hirsutism suppurativa. अब suppurativa में basically इसमें इशू क्या हुआ है, यहाँ पे ना sweat glands होते हैं, if you all understand, sweat glands होते हैं जहां से पसीना बनता है, आपका sweat remove off होता है। तो वहां पे जब क्लॉग आउट हो जाता है, क्लॉगिंग हो जाती है, तो इस तरीके से बहुत ही पेनफुल काइंड ऑफ पिंपल्स जनरेट आउट होते हैं वहां। ठीक है, एंड इनको आपको किसी भी केमिकल पील से उससे क्लियर ऑफ नहीं करना होता है। रीजन बीइंग, क्योंकि उसकी वजह से और ज्यादा ट्रिगर ऑफ हो जाएंगे, या हो सकता है और ज्यादा एग्रेसिव हो जाए। सो ये मेडिसिन से ट्रीट होते हैं, मेडिसिनल ट्रीटमेंट है इनका, उससे ट्रीट होके, उससे जब ये थोड़ा सा सूख जाए या थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाए, तो जिनको भी बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्वेट का प्रॉब्लम होता है, उनमें फिर व्हाट वी डू, वी ट्राई टू गिव दैम, कि हम ऐसे में ना बोटॉक्स ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं उन्हें। तो जब हम ऐसे ट्रीटमेंट में बोटॉक्स करते हैं तो उनका जो भी स्वेट का जो टेंडेंसी है वो डाउन होता है, वो कम होगा, मसल एक्टिविटी कम होगी, एंड इस तरीके की प्रॉब्लम से उन्हें बहुत अच्छा एंड थोड़ा सा लॉन्ग टर्म उनको रिलीफ मिलता है। ओके, सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि ऐसी कंडीशंस में ना प्लीज डोंट गो फॉर केमिकल पील्स एंड एसिड्स, तो बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट कम्स दी कांग्लोबाटा। सी बेसिकली इफ यू आर लुकिंग आउट, क्या ये आपको बिल्कुल ही एकदम, यू कैन सी इट कि इट इज लुकिंग लाइक अ कि आपको उसकी तरह दिख रहा है, नोड्यूल्स की तरह, करेक्ट, बट इट इज नॉट बेसिकली नॉट अ नोड्यूल या नॉट अ सिस्टिक एक्ने नहीं है ये। ठीक है, ये एक बहुत ही रेयर और सिवियर क्रॉनिक फॉर्म है एक्ने का, जो बेसिकली इंटरलिंक्ड होता है, इंटरकनेक्टेड है। ये एब्सेस से हो गया, साइनस ट्रैक्ट इसमें बन जाते हैं। साइनस ट्रैक्ट मतलब एक तरफ से ओपनिंग रहती है, दूसरे तरफ में पूरा एकदम ऐसा गहरे में अंदर कनेक्ट, डीप टिश्यूज में कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके की चीजों को क्रिएट आउट करता है। एंड कई बार होता है, ये जब ओके होता है ना, जब ठीक होता है, तो ये डिसफिगर, मतलब आपके एरियाज को ये काफी ज्यादा हद तक नुकसान, तो स्कारिंग, एक्सट्रीमली स्कारिंग एंड उस तरीके की चीजों को ये छोड़ जाता है। तो इसको नॉर्मल चीजों से आप ट्रीट आउट नहीं कर सकते, इसको एक मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, एंड वो हमको देखना जरूरी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्यूडोफॉलिकुलाइटिस। ठीक है, अब हम स्यूडोफॉलिकुलाइटिस की जो हम बात कर रहे हैं, ये हेयर्स की वजह से होता है। आपने गलत रेजर घुमा दिया, आपने दूसरे का रेजर यूज कर लिया, तो ये बेसिकली एक इन्फेक्टेड एरिया है, इन्फेक्शन की वजह से इतनी चीजों को फ्लेयर अप हो गया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, एंड ये मेडिसिन के थ्रू ट्रीट होगा। इन्फेक्शन इज ऑलवेज ट्रीटेड बाय मेडिसिन, ओके, नॉट बाय केमिकल पील्स। नेक्स्ट कम्स दी पेरिओरल डर्मेटाइटिस। कैन यू सी ओवर हियर, पेरिओरल डर्मेटाइटिस की अगर हम बात करें, तो पेरिओरल डर्मेटाइटिस बेसिकली अकर्ड बिकॉज ऑफ सम एलर्जिक रिएक्शन or any kind of reaction, maybe
with the lip balm, maybe with the cream, maybe with the kind of अगर आप मास्क पहनते हैं तो because of that, maybe because of other person, maybe because of the kiss, maybe because of the other person kissing you out. तो वो सारी जो भी चीजें उसकी वजह से ये जो इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन क्रिएट हुआ, स्किन में इन्फेक्शन हुआ, एलर्जिक रिएक्शन हुआ, स्किन इन्फेक्शन हुआ, उसको ट्रीट करने के लिए यू नीड एंटी एलर्जिक रिएक्शन पिल्स चाहिए होते हैं, या तो यू नीड अदर काइंड ऑफ हैवी डोसेज पिल्स या फिर मेडिसिन रिक्वायर्ड होते हैं, राइट? तो ऐसे में आप एसिड पील्स नहीं करते हैं, यू डोंट डू दैट, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा हीट की वजह से फ्लेयरिंग हो जाएगी एंड पूरा फेस कंप्लीटली वर्सन अप हो जाएगा, ठीक? नेक्स्ट आता है रोजेशिया। नाउ जब हम बात कर रहे हैं रोजेशिया की, रोजेशिया सेंसिटिव स्किन, मतलब स्किन का जो स्किन का बैरियर है, स्किन बैरियर जो है वो डैमेज हो गया है, स्किन बैरियर डैमेज की वजह से कंटिन्यूअस रेडनेस फेस के ऊपर बनी हुई है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ड्राइड आउट स्किन, बिकॉज ऑफ दैट बैरियर डैमेज, ये जो कंटिन्यूअस रेडनेस है ये जाएगी नहीं एंड स्किन बिकम्स वेरी सेंसिटिव। ऐसे सेंसिटिव कंडीशन में, बैरियर डैमेज कंडीशन में, इफ यू ट्राई टू डू एसिड्स और इफ यू ट्राई टू डू केमिकल पील्स, ये चीजों को और ज्यादा खराब करेगा, मे बी कैन लीड टू डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एज वेल, ओके? नेक्स्ट आता है हमारा फंगल फॉलिकुलाइटिस। ऑब्वियसली फंगल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन के अंदर में कोई केमिकल डील करता है क्या? उसमें फंगल, बेसिकली आपके फंगल मेडिसिन चलेंगी, एंटी फंगल मेडिकेशन चलेंगे, करेक्ट? तब जाके वो सेटल डाउन होगा। देन कम्स द फॉलिकुलाइटिस। फॉलिकुलाइटिस अगेन कई बार होता है ना, मेनी ऑफ द पीपल इवन हैव दिस इश्यूज अबाउट, बाल तोड़ भी हो जाता है कई लोगों को, तो उसमें भी आपको पील नहीं कर देना, यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉजेटिव फैक्टर। वहां इन्फेक्शन हुआ है, वहां इन्फेक्शन का रीजन है स्ट्रेप्टोकोकस है, दूसरे फाइलोकोकस है, क्या बेसिक एक इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है, उसको समझ के देन यू हैव टू गो फॉर इट, एंड उसके बाद आप उसको मेडिसिनली एंड बाकी चीजों के थ्रू ट्रीट करोगे, करेक्ट? एंड देन वी हैव द लास्ट केराटोसिस पिलारिस। नाउ केराटोसिस पिलारिस को आप, यू डू नॉट ट्रीट इट विद केमिकल पील्स, आप पील्स के थ्रू केराटोसिस पिलारिस ट्रीट नहीं करते हो। केराटोसिस पिलारिस को आप ट्रीट करते हो बाय एक्सफोलिएशन, by the help of I'll say the soothing, basically moisturizing by soothing kind of I'll say ceramides, squalene, all these kind of moisturizers, lotions, उनके थ्रू आप ट्रीट करते हो केराटोसिस पिलारिस को, एंड नॉट बाय ट्रीटिंग देम विद केमिकल पील्स, ओके? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉज। आपको ये समझना जरूरी है कि आपको ये पिंपल या आपको ये एक्ने ट्रीट करना है या नहीं करना है। It is important for you to understand कि whether it is actual your forte, or to be very honest, whether it has to be treated by acids or it has to be dealt via medicinal track route or with the help of any other treatment, okay? तो हर एक एक्ने को आप एसिड से ट्रीट करो, इट इज नॉट अ कंपल्शन। हर एक एक्ने को आप एक जैसा ट्रीट करो, नॉट एट ऑल। सो उसको समझना कि वो कौन सा टाइप है, कौन सा उसका क्या प्रकार है, किस टाइप का ये एक्ने है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट प्लान करना इज वेरी इफेक्टिव, और रिजल्ट्स भी डेफिनेटली मिलते हैं। तो मेजरली जो हम प्रॉब्लम जो हमारे साथ आती है एक्ने में, स्पेसिफिकली लोगों के साथ आती है, फाइंड आउट नहीं कर पाते कि प्रॉब्लम क्या है। नाउ टॉकिंग अबाउट फैक्टर्स, ओके, आई थिंक ये काफी लोगों को इसका बहुत इजीली, अब तो बहुत इजीली लोगों को पता है, पीपल अंडरस्टैंड इट, पीपल नो इट अलॉट। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स, तो फैक्टर्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो फैक्टर्स में डिफरेंट फैक्टर्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, नंबर 1 which comes is the hormones, number 2 stress, number 3 lifestyle habits, number 4 diet, and number 5 incorrect skin care, okay? ये जितनी भी चीजें हैं ये हर एक के लिए, every person, it is valid enough, मेल हो फीमेल डजंट मैटर। हाँ, एक हॉर्मोन्स हैं जो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएटिव इधर उधर हो सकते हैं, फीमेल्स में थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव या थोड़ा सा ज्यादा दे शो मोर ऑफ द प्रेजेंस ओवर देयर। अब बेसिक चीज समझना, ठीक है? वील स्टार्ट फ्रॉम स्ट्रेस एंड देन वील ग्रेजुअली मूव अहेड। देखो, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हो, इफ यू स्ट्रेस आउट अ लॉट, ओके, व्हाट हैपेंस, बेसिकली आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल हाई बनेगा। सो कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन, करेक्ट? तो जब भी आपकी बॉडी में एक्सेसिव या ज्यादा अमाउंट में आप स्ट्रेस लोगे और कॉर्टिसोल लेवल हाई रहेगा, उसकी वजह से इट विल ऑलवेज कीप ऑन ट्रिगरिंग सेबेशियस ग्लैंड टू मेक मोर एंड मोर ऑयल और सीबम, करेक्ट?
So when that thing happen, when this all sebum basically produces up, it is going to lead to clogging, and it is going to start producing pimples or acne. Okay. Next, we are talking about the lifestyle habits. Now, lifestyle habits incorporate a lot of things. Sedentary lifestyle, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गया है, सिटिंग चेयर वर्क, आपका कोई भी और वे ऑफ फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल वॉकिंग या वर्किंग नहीं है, so yes, that can lead to sleep cycle आपका disturbed है, you are not sleeping properly, or I'm not just talking about you, I'm talking about your clients as well. They're not sleeping on time, continuously on the phone, and they're not eating because of that. उनका डाइट भी खराब हो रहा है, बिकॉज खाने में उनका सब चीजें बाहर का चल रहा है, पैकेट फूड ज्यादा चल रहा है, लाइक रेडी टू फूड ज्यादा है, एंड ऑल दोज थिंग्स. आई अंडरस्टैंड पीपल आर गेटिंग मोर न्यूट्रिशन चीजों को लेके लोग ज्यादा अवेयर होने लगे, एंड फिटनेस को लेके लोग ज्यादा अवेयर होने लगे हैं, बट स्टिल देयर इज अ लॉन्ग वे टू कवर इट अप, especially when we are talking about the females. You know, see, I'm also female. I understand many of you may feel it very offensive, but see, please try to understand. I'm not trying to be very offensive. I'm not trying to like give out any judgment or something, but please understand, many a times females try to keep other work forward, or they try to like prioritize the certain things in manner कि ठीक है उनकी खुद की हेल्थ या उनका खुद का फिजिकल एक्टिविटी या टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स टेक अ बैक सीट. उसकी वजह से व्हाट हैपेंस, इट टेक्स अ टोल ऑन देयर ओन हेल्थ. तो कई बार वो चीजें समझ में भी, कई बार वो समझ में भी नहीं आती. आपके पास कई ऐसे क्लाइंट्स आएंगे, दे डोंट अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में हुआ क्योंकि सब चीज ओके ही चल रहा है, बट प्रॉब्लम कहाँ हुई है, बिकॉज उनको ये समझ नहीं आ रहा कि खाना जो पहले चल रहा था वो चेंज हो गया है, द काइंड ऑफ फूड मे बी उसके पैटर्न में चेंज आया है, मे बी लाइफस्टाइल पैटर्न में चेंज आया है, मे बी स्लीपिंग साइकिल में डिस्टर्बेंस आई है, हार्मोन्स उसकी वजह से ट्रिगर ऑफ हो गए हैं, या फिर मेनी टाइम्स वो स्किन केयर उन्होंने कुछ सडनली देख के किसी इन्फ्लुएंसर को या किसी को देख के दे स्टार्टेड ऑन सर्टेन काइंड ऑफ स्किन केयर एंड वो बैकफायर किया. Okay, okay, here I like to join one more thing. If you have register or pen, you can note that down. Many of the boys, okay, I'll not say everyone, okay, I'm not journalizing it, but we have seen many in my practice also, and in my experiences also, I've seen many of the boys who start going to gym, okay, they start gymming, they start taking their physical activity, or they start taking the physical health very importantly. तो प्रॉब्लम क्या होता है ना, जिम में जब आप जाते हैं तो जिम में डिफरेंट पीपल आर कमिंग एंड टचिंग डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. कई बार वो क्लीन होते हैं, कई बार नहीं होते हैं. तो यस, इन दैट अनहाइजीनिक प्रोटोकॉल्स आल्सो बॉयज स्पेसिफिकली स्टार्ट हैविंग दीज काइंड ऑफ ट्रिगर्स, कि उनको ये भी ट्रिगर आउट होने लगता है. तो व्हाट यू कैन डू, कि कभी भी आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है, मेल क्लाइंट्स है, फीमेल, आप दोनों में पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क देम कि उन्होंने रिसेंटली अभी कोई जिम वगैरह ज्वाइन किया है क्या, तो क्या उसकी कंडीशन की वजह से ये तो नहीं ट्रिगर हुआ. ओके. सेकेंड, मेनी ऑफ द पीपल जिम बाद में जाते हैं, बट दे स्टार्ट टेकिंग वे प्रोटीन, केरेटिनिन, ये सब चीजें पहले स्टार्ट होने लगती हैं. ओके. सो बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. There is no direct evidence, but there is an indirect evidence is present, studies present, that whey protein may trigger off or may trigger basically the hormones inside the body, and that may lead to sebaceous gland triggering and sebum production, and may lead to the pimple formation. Okay, we are not saying that it is 100% possibility, but yes, 80% possibility is there. So you cannot deny it. कई बार लोगों की गट हेल्थ को प्रोटीन सूट करता है, कई बार नहीं करता. एंड प्लीज अंडरस्टैंड, इन टुडेज एरा 2026, गट हेल्थ इज इक्वली इंपॉर्टेंट. गट का माइक्रोबायोम, गट का मेटाबॉलिज्म अगर ठीक नहीं है, काफी सारी बॉडी के अंदर में आपकी चीजें खराब हो जाएंगी, वो चाहे हार्मोन्स हो, बॉडी इन्फ्लेमेशन हो, कॉर्टिसोल लेवल हो, स्ट्रेस हार्मोन्स हो, आपके डाइट में क्या चीजें आपको क्रेव कर रही हैं, क्या नहीं कर रही, वो काफी सारी चीजें आपकी गट हेल्थ से कनेक्ट हो जाती है. तो इसीलिए जो फैक्टर्स आपको सामने दिख रहे हैं 5, इसके अलावा जो 2 अदर फैक्टर्स जो और ट्रिगर कर सकते हैं एक्ने को आर गट हेल्थ. 6th number is gut health, and 7th number is your gym supplements, if I'm talking about. So yes, ये 2 भी ऐसी चीजें हैं जो ट्रिगर आउट कर सकती हैं एक्ने फॉर्मेशन को. Correct? Now, basic acne mechanism जब हम बात करते हैं ना, if you are talking about, if you see over here,
इट्स अ पाइलोसेबेशियस फॉलिकल, जिसमें आप देखोगे अगर ये क्लॉग्ड जो है वो अगर बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कनेक्शन में है तो इट बिकम्स ब्लैक एंड कॉल्ड दैट ब्लैक हेड। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कनेक्शन में नहीं है, if it is not in the connection, it becomes white and it is basically called that white head. उसके बाद में पैप्यूल, पुस्यूल, cyst, nodules, different kind of inflammatory lesions दिखते हैं। Okay, these two are non-inflammatory acne और ये जो बाकी हैं ये है inflammatory acne. So there are two differentiation. Please understand them, inflammatory और non-inflammatory. ठीक है? Now we are talking about the next thing. Okay, स्किन टाइप्स एंड कंडीशंस की जब हम बात करते हैं तो ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन, सेंसिटिव स्किन, मैच्योर्ड स्किन एंड कॉम्बिनेशन, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किन दैट आर प्रेजेंट आउट देयर, जिनके अंदर में पिंपल की प्रॉब्लम ऑन एंड ऑफ में दिख सकती है। देखो, ऑयली स्किन में होगी, कॉम्बिनेशन स्किन में होगी, इज वैलिड इनफ। कई लोगों को लगता है हाँ बिल्कुल हो सकती है, बिकॉज सीबम प्रोडक्शन है, सेबेशियस ग्लैंड एक्टिव हुआ तो डेफिनेटली क्यों नहीं हो सकती है। बट डू यू इवन नो कि ड्राई स्किन के अंदर में भी पिंपल्स हो सकते हैं? यस, इवन ड्राई स्किन कैन ट्रिगर आउट द पिंपल, सेंसिटिव स्किन कैन ट्रिगर आउट पिंपल। हाउ एंड व्हाट, उसके लिए यू नीड टू स्टे कनेक्टेड टिल द एंड एंड वील डिस्कस एवरीथिंग। ठीक है, अब स्किन टाइप के अकॉर्डिंग भी बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, तो स्किन टाइप में भी वी कैन डिसाइड एंड हमें समझ आता है कि कौन सी स्किन में ज्यादा एक्ने देखने को मिलेंगे। बट सेम टाइम में यू कैन नॉट जस्टिफाई, यू कैन नॉट गिव अ लेबल कि हाँ सिर्फ ऑयली स्किन में होगा, नहीं, इट कैन हैपन इन द ड्राई स्किन एज वेल सेम टाइम पे। ठीक है, अब हमने देखो एक्ने के बारे में इतना समझा, पढ़ा, चीजों को देखा, हमने फैक्टर्स देखे, हमने टाइप्स ऑफ एक्ने देखे, वी डिस्कस्ड अ बेसिक थिंग अबाउट द एक्ने। देखो, हम बहुत ज्यादा ना गहराई में हम बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डीपली हम नहीं बात कर रहे हैं, बिकॉज उतना टाइम भी नहीं है। एट द सेम टाइम मैं इस तरीके से ना आपको हर एक चीज को यहाँ जस्टिफाई भी नहीं कर पाऊंगी। वी नीड जस्ट टू अंडरस्टैंड एक्ने। एक्ने के सिर्फ फैक्टर्स को पढ़ने के लिए यू नीड 3 क्लासेस। कि वो फैक्टर्स को अच्छे से डीपली पढ़ने के लिए, उन फैक्टर्स को समझने के लिए एंड हर एक ट्रिगरिंग पॉइंट को समझने के लिए यू नीड एटलीस्ट 3 to 4 क्लासेस जस्ट फॉर द फैक्टर्स, है ना। तो वहां तक पहुंचने के लिए इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्टडी, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ बेसिकली रीडिंग, अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंड एक्ने फ्रॉम द कोर, ताकि वहां से जब आप उससे फाइट करें तो आपको एक भी पेशेंट आपके पास से वापस ना जाए, एक भी पेशेंट आपके पास से रिटर्न ना जाए। Now, if you are talking about, so हमने एक्ने को थोड़ा बहुत समझा, we understood, हमने एक बेसिक, we understood the base basically, हमने एक बेस समझ लिया कि अच्छा एक्ने ऐसे होते हैं, क्लॉगिंग होगी, वहां पे बैक्टीरिया आएगा एंड उसकी वजह से एक्ने होगा। ठीक, अब हमें पॉजिटिव फैक्टर्स थोड़े बहुत पता है, हमें फैक्टर्स थोड़े बहुत पता है कि ठीक है स्ट्रेस की वजह से, हार्मोन्स की वजह से, रेस्ट अदर ये भी इश्यूज की वजह से हो सकते हैं। हमें टाइप्स पता है, 5 टाइप्स हैं। ठीक है, पैप्यूल, पुस्यूल्स, सिस्ट है, नोड्यूल है, वी हैव कॉमेडॉन्स एज वेल। अब नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ प्रोबेबल सॉल्यूशन। हम एक प्रोबेबल सॉल्यूशन के बारे में बात करें। सी, केमिकल पील या केमिकल एसिड्स एक अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है, दे आर नॉट लाइक एन अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, बट दे आर लाइक अ बिगेस्ट सेवियर एज वेल। जब हम केमिकल पील्स की बात करते हैं तो इनिशियली जब आपको, मैं देखो ऑनेस्टली आई विल टेल यू, जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो कि मैं क्या करूं एंड यू वांट टू ट्रीट द क्लाइंट आल्सो एंड यू वांट द बेस्ट फॉर योर क्लाइंट कि उसको एक अच्छा रिजल्ट भी मिले, केमिकल एसिड्स कम हैंडी, दे कम हैंडी। ओके, इसके अलावा और भी डिफरेंट ट्रीटमेंट्स है विच कैन बी हेल्पफुल, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, केमिकल एसिड्स बिकम लाइक अ बून। अगर अच्छे से आप यूज करोगे ना, अगर इफ यू नो कि कौन सा पील कब यूज करना है, इस पील को कितने देर तक रखना है, इस पील का मैक्सिमम मतलब कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, उसको मैं कैसे अवॉइड कर सकता हूँ या सकती हूँ, वो आपको मालूम है। केमिकल एसिड्स, केमिकल पील्स आपके बेसिकली एक ना, आई बी वेरी स्पेसिफिक, ये ना आपके एक तरीके से दे बिकम लाइक अ ब्रह्मास्त्र फ्रॉम यू, आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करते हैं, बिकॉज आप डिफरेंट वेराइटीज, डिफरेंट मिक्स एंड मैच के साथ में, वे के साथ में, एंड बाय गिविंग आउट सर्टेन चीजों के साथ में आप इसको बहुत अच्छे से कंबाइन कर सकते हो, बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, एंड यू कैन प्रोबेबली गेट बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स विद इट। ओके, सी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल पील्स, तो बेसिकली क्या है, ये पील्स जो है, केमिकल पील्स जो है, ये एसिड बेस्ड सॉल्यूशंस हैं।
केमिस्ट्री में सबने पढ़ा है एसिड्स होते हैं, बेस होते हैं, देन देयर इन बिटवीन वाटर है, ठीक है। अब एसिड बेस कैसे डिसाइड होता है, तो एक पीएच स्केल होती है। पीएच स्केल आपकी 0 to 14 तक एक पीएच स्केल कंप्लीट होती है। 7 आपका न्यूट्रल नंबर बनता है, ठीक है। 7 आपका न्यूट्रल नंबर है जहां पे पानी H2O है, जहां पे हमारा पानी बैठा है, ठीक। अब जो भी 7 नंबर से नीचे है, 6, 5, 3, 4, जो भी मतलब जहां पे जो भी नीचे है वो एसिड कैटेगरी में आता है। एंड जो भी 7 नंबर से ऊपर बैठते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 14 तक जितने भी हैं, ये सारे के सारे बेस कैटेगरी में बैठते हैं, ठीक है। आई थिंक ये बहुत ही बेसिक केमिस्ट्री चीज है, एवरीवन नोज अबाउट इट। अब ये जो पील्स हैं, केमिकल पील्स हैं, एसिड्स हैं। सो ये 7 नंबर से नीचे आते हैं, एसिड्स हैं, दे आर हाईली पोटेंशियल, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली, अगर बहुत हाई परसेंटेज में आप यूज करते हो, एसिड्स है, हाई परसेंटेज है, तो देयर कैन बी अ सिवियर कॉम्प्लिकेशंस एज वेल। बट अगर आपको मालूम है कि व्हाट परसेंटेज यू आर यूजिंग, ऑन व्हाट कंडीशन यू आर यूजिंग, हाउ टू बेसिकली हैंडल दिस, कैसे इसको लॉक करना है, कैसे इसको रोकना है, कैसे इसको ट्रीट आउट करना है, मैनेज कैसे करना है, यू गेट ब्रिलियंट रिजल्ट्स विद पील्स। ना सिर्फ एक्ने में, सिर्फ एक्ने में नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्ने, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स, डार्क अंडरआर्म्स, बॉडी एक्ने, बैक पिगमेंटेशन, and ऐसे scars के अंदर you get great results with melasma and what not. I'll keep on counting, every kind of problem has a solution in the form of chemical acids, because ये इतने सारे हैं, multiple in number हैं, and everyone works differently but everyone works brilliantly, right? बेसिक, जो सबसे बेसिक काम जो केमिकल पील्स करते हैं, दैट इज एक्सफोलिएशन, ठीक। एक जो मेजर काम, सबसे इंपॉर्टेंट और एक जो मेन काम जो पील्स करते हैं वो है एक्सफोलिएशन का, ठीक। उसके अलावा फिर डिफरेंट पील्स डिफरेंट काम भी करते हैं। कई अनक्लॉगिंग भी करते हैं, तो अनक्लॉगिंग ऑफ द पोर भी करते हैं। कई जो है स्किन रिजुविनेशन में हेल्प करते हैं। कई जो है ऑब्वियसली डेड स्किन रिमूव कर रहे हैं, एक्सफोलिएट कर रहे हैं, अनक्लॉगिंग कर रहे हैं, एट द सेम टाइम बैक्टीरिया किलिंग में भी हेल्प करते हैं। तो डिफरेंट पील्स जो है वो डिफरेंट वैरायटीज में हेल्प आउट कर सकते हैं, एंड दे वर्क इन दैट मेजोरिटी वे। बट एक जो सबसे बेसिक कॉमन फंक्शन जो सारे पील करते हैं वो है एक्सफोलिएशन का, ठीक है। नाउ एज वी मूव अहेड, we need to understand the type of chemical peels. Okay, can you see this chart and diagram? I just need a yes or no. Can you see the chart and diagram? आप चार्ट देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर? I need a response, everyone. Okay, can you see the chart over there? Can we see? I'm not getting a yes. अरे भाई सोना नहीं है, आई नो आफ्टरनून का टाइम है, सबने लंच किया हुआ है, सब बढ़िया एकदम आराम से बेड पे लेट के काम कर रहे हैं, पढ़ाई भी वहीं से लेट के हो रही है, लेकिन लेट्स बी अ लिटिल एक्टिव। ओके, थैंक यू कनीज, थैंक यू आरती फॉर रिस्पॉन्डिंग। यस, ओके, आई गेट इट। हाँ, खाना खा के एकदम लंबा नहीं होना है, लेट्स पे अ लिटिल अटेंशन, सो एवरीवन इज ओवर हियर टू लर्न समथिंग। ओके, चलो, so type of chemical peels का आप देख रहे हो, so you can see a chart over here, ठीक है। you can see a chart over here, जिसके अंदर में आप एक ऑरेंज लाइन, you can see a purple line, you can see a green line, you can see a light blue line। ये जो है ये डिफरेंट केमिकल पील्स का बेसिकली स्किन के अंदर में, जो आपकी स्किन है, आपकी स्किन के अंदर में डिफरेंट लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, ठीक है। जो भी ब्यूटी इंडस्ट्री से रिलेटेड है उन्हें इतना एक बेसिक चीज तो पता ही है कि स्किन है, स्किन के अंदर में लेयर्स हैं, उन लेयर्स में सबसे ऊपर होती है एपिडर्मिस, उसके बाद है हमारी डर्मिस, एंड देन वी हैव हाइपोडर्मिस, ठीक है। तो अब जब हम बात कर रहे हैं एपिडर्मिस की, यस, ये यहां से यहां तक ना ये पूरी एपिडर्मिस है, यहाँ टॉप से लेके फ्रॉम हियर, ओके, कैन यू सी नाउ, यहां से लेके यहाँ टॉप से लेके यहां तक ये पूरी एपिडर्मिस है। फिर उसके बाद ये यहां से फ्रॉम हियर टू हियर ये पूरी डर्मिस है, ठीक है। एंड देन उसके बाद में यहाँ पे ये हमारा जो सबक्यूटेनियस फैट है ये हमारा है हाइपोडर्मिस, ठीक है। अब जब हम एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं, एपिडर्मिस के अंदर में डिफरेंट लेयर्स होती हैं, जिसके अंदर में यू गेट लाइक 5 लेयर्स उसके अंदर में आती हैं। तो उसमें अगर ये जो केमिकल पील है ये सिर्फ शुरुआती फर्स्ट लेयर पर जब वर्क कर रहा है, ओनली इनिशियल लेयर पर वर्क कर रहा है, इसको कहा जाता है वेरी सुपरफिशियल पील,
ओके, इसे हम बोलते हैं वेरी सुपरफिशियल पील, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ स्किन की ऊपरी सतह डेड स्किन सेल पे ही काम कर रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा सुपरफिशियल पील। सुपरफिशियल पील हमारा वर्क करता है जो एपिडर्मिस की लास्ट लेयर है, बेसल लेयर, जहां से बाकी के ऊपर वाले जो सेल्स है ना वो बनते हैं। तो यहां से यहां तक अगर आपकी पील काम कर रही है, इट इज कॉल्ड एज सुपरफिशियल पील। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी मीडियम डेप्थ पील, ये जो ग्रीन कलर में। मीडियम डेप्थ पील का सिंपल मीनिंग है ये एपिडर्मिस को क्रॉस करके, एपिडर्मिस पे तो वर्क कर ही रही है बट एपिडर्मिस को क्रॉस कर गई है, और पैपिलरी डर्मिस मतलब डर्मिस की सिर्फ ऊपरी सतह, ये वाली, करेक्ट, यहाँ पे जहां पे पैपिला बने, पैपिला मतलब ये इस तरीके की जो ये लाइन बनी है ना, ये दिस काइंड ऑफ, यस दिस काइंड ऑफ, ये जो एक वे ऑफ वेवी लाइन जो बनी है, इसको क्रॉस करके यहां तक पूरा टच कर रही है, देन दिस इज कॉल्ड अ मीडियम डेप्थ पील, पैपिलरी डर्मिस तक ये जा रही है। देन वी हैव गॉट डीप पील। ये जो डीप पील है ये जा रही है आपकी रेटिकुलर, मतलब ऑलमोस्ट रेटिकुलर डर्मिस या फिर सबक्यूटेनियस फैट मतलब हाइपोडर्मिस तक, तो ये हमारा डीप पील कहलाता है। ठीक है, डेप्थ के बेसिस पे कि आपकी पील कहां तक जा रही है, कौन सी स्किन लेयर पे टच कर रही है, कौन सी स्किन लेयर को कहां तक में बेसिकली ट्रिगर कर रही है, उसके बेसिस पे हमारे पास 4 टाइप्स हैं केमिकल पील के, वेरी सुपरफिशियल, सुपरफिशियल, मीडियम एंड डीप। ओके, नाउ इसके अलावा बेसिकली जो काम है केमिकल पील्स का, केमिकल एसिड्स का एक तरीके से, तो हाउ दे आर वर्किंग, ये क्या करते हैं केमिकल पील्स, जैसे ही आपने एप्लीकेशन किया स्किन के ऊपर, ये जो सेल है आप देख रहे हो पूरा स्किन है वो सेल से ही बना होता है, तो ये सेल के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स मतलब एक दूसरे से जो कनेक्टेड होते हैं, उसको ये बेसिकली तोड़ देता है। तो ये केमिकल एसिड ये पील क्या है, दो सेल के बीच का जो जुड़ने की कड़ी है जिसे हम बॉन्ड बोलते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं बट या बॉन्ड बोलते हैं, उसको ये ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है, पहला काम, तो जैसे ही वो टूटेगा सेल्स आपके लूज हो जाएंगे और इजी हो जाएगा उनको एक्सफोलिएट करना, तो इसीलिए केमिकल पील का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होता है एक्सफोलिएशन। ठीक है, सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क केमिकल पील करते हैं वो है अनक्लॉगिंग, क्योंकि ये इस तरीके से डीप आ सकते हैं, आप देख रहे हो सुपरफिशियल पील कहां तक आ सकता है, वेरी सुपरफिशियल कहां तक आ सकता है, तो ये क्या करते हैं, ये जो एकदम लिक्विड की तरह होते हैं, तो आपके पोर के अंदर ये धीरे से चले जाते हैं, जैसे ये पोर्स के अंदर जाते हैं वहां पे जाके जो भी गंदगी है उसे डिसॉल्व आउट कर देते हैं, जो भी बैक्टीरिया है उसको मार देते हैं। ठीक है, और एट द सेम टाइम कुछ ऐसे भी पील्स हैं जो सिबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी को भी रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो ऑयल कम बनता है, कम ऑयल बनेगा, एंड इसकी वजह से वी कैन सी एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड कि केमिकल पील्स ना सिर्फ एक्सफोलिएशन में, केमिकल पील ना सिर्फ एक्सफोलिएशन में बट दे आर ऑल्सो हेल्पिंग अस इन द फॉर्म ऑफ बेसिकली वर्किंग अनक्लॉगिंग में, ऑयल बिल्डअप को रिड्यूस करने में, और इवन स्किन स्ट्रक्चर को भी रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। करेक्ट, सो नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि केमिकल पील्स जो हैं उनका टाइप्स इस तरीके से, अच्छा आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, केमिकल पील ना इस तरीके से भी डिवाइड होते हैं, इस तरीके से मतलब आई विल गिव यू अ बेसिक क्लासिफिकेशन, आपके पास अगर नोटबुक पेन या पेंसिल है प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, इसमें वो चार्ट बना नहीं है बट हाउ आई लर्न या हाउ आई कीप अ रिमेम्बरेंस मैं उसको याद रख पाती हूँ, तो प्लीज एक चार्ट क्रिएट कर लीजिए ऑन योर नोटबुक, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, नंबर 1 इज AHA, AHA, ओके, नंबर 1 डालिए टाइप्स ऑफ पील्स के अंदर में, पहला डालिए AHA, दैट इज कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। ओके, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक, वाटर सोल्यूबल है, वाटर के साथ में इजिली मतलब दे कैन मिक्स एंड मैच, ऑयल को हो सकता है उतना ज्यादा ये ट्रिगर ना करें बट वाटर के साथ में इनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी होती है। अब अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स के अंदर में कौन कौन से आते हैं, तो उसके अंदर में लिखिए ए पॉइंट करके लिखिए ग्लाइकोलिक एसिड, बी करके लिखिए मैंडलिक एसिड, सी करके लिखिए लैक्टिक एसिड। ओके, इस तरीके से यू हैव गॉट डिफरेंट काइंड ऑफ पील्स के आपको नाम मिल गए, बट वो कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, AHA में।
तो AHA के अंदर में आते हैं हमारे ग्लाइकोलिक, लैक्टिक, मैंडेलिक. ओके, नाउ नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट गोज BHA. BHA लिखेंगे हम, दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी एसिड. ये ऑयल सोल्यूबल है. ऑयल सोल्यूबल मतलब जो भी ऑयल लेवल होगा, वाटर नहीं बट ऑयल को ये डिसॉल्व आउट कर सकते हैं. इसीलिए BHA जो कैटेगरी है वो एक्ने पेशेंट्स के लिए गोल्डन है. दे आर लाइक अ गोल्डन बून फॉर देम. दैट इज द रीजन, क्योंकि ये ऑयल सोल्यूबल है. ऑयल को बहुत इजिली ये लोग एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, ऑयल को बहुत इजिली ये लोग टैकल कर पाते हैं. फॉर दैट रीजन दे वर्क बेस्ट टू पेनिट्रेट इनटू द पोर. पोर के अंदर बहुत अच्छे से इजिली पेनिट्रेट कर पाते हैं एंड उसको बहुत ही इजिली क्लियर ऑफ, अनक्लॉग कर पाते हैं. ओके, सो BHA के अंदर में आ गए हमारे सैलिसिलिक एसिड. ओके, प्लीज नोट दैट डाउन. सैलिसिलिक एसिड आता है हमारा उसके अंदर एंड सिट्रिक एसिड आता है, दो आते हैं. ठीक, नाउ कम्स द नेक्स्ट वन. ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स द जो मीडियम डेप्थ पील. रिमेंबर मीडियम डेप्थ पील, उसमें लिखो प्लीज, नॉट डोंट राइट मीडियम डेप्थ बट प्लीज राइट डाउन रेटिनॉल पील और स्लैश करके लिखो येलो पील. ओके, नेक्स्ट उसके बाद आता है जेस्नर सॉल्यूशन और वी कैन कॉल देम एज जेस्नर पील. ये कॉम्बिनेशन पील होता है, इसके अंदर में रिसोर्सनॉल, मतलब डिफरेंट क्वांटिटी में, डिफरेंट परसेंटेज में ये कंबाइंड पील में आता है जेस्नर. करेक्ट. उसके बाद लिखो नेक्स्ट, जेस्नर के बाद में आते हैं डीप पील्स. ओके, अब वो डीप पील्स के अंदर में अलग अलग कैटेगरी आती है. डीप पील्स के अंदर में पहला लिखो TCA, सेकेंड लिखो पायरुविक पील. ओके, एंड थर्ड मेंशन करो फिनॉल पील. डन. नाउ एवरीवन हैज एक बेसिक्स है ना आपके हाथ में, आपके पास में ना एक चार्ट क्रिएट हो गया होगा. आप लोगों ने जो नोट डाउन किया है, अगर किया है प्लीज डू दैट बिकॉज इसमें वो मेंशन नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू वन बाय वन. अगर आपको डाउट है, कहीं पे कुछ छूट गया है, आप चैट में लिख दो, आई विल रिपीट इट अगेन. बट प्लीज अंडरस्टैंड कि ये जो चार्ट है, आप इस तरीके से जब उसको याद रखोगे ना, आप कभी भी गड़बड़ नहीं करोगे. आप कभी भी ये नहीं समझोगे कि अच्छा कौन सा पील कहाँ रखना है, कौन से पील से क्या करना है, वो प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी. तो AHA के अंदर हमारे कुछ पील्स आ रहे हैं, BHA के अंदर आ रहे हैं, देन वी हैव गॉट रेटिनॉल पील, देन वी हैव गॉट जेस्नर्स, देन वी हैव गॉट डीप पील्स. तो अलग अलग पील्स की हमारे पास टोटल कैटेगरी है. गॉट इट. अब वहीं पे आप देखोगे सामने आपको उसमें दिख रहा है आपके स्लाइड के अंदर में, सैलिसिलिक हेल्प्स वेरी गुड विद द ऑयली स्किन, ऑयली एक्ने एंड ऑल दैट. ग्लाइकोलिक हेल्प करता है वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट्स विद द टेक्सचर. टेक्सचर के साथ में बहुत ही सुंदर रिजल्ट, क्योंकि ब्रिलियंट, इट्स अ वेरी ब्रिलियंट एक्सफोलिएटर. सबसे अच्छा एक्सफोलिएटर अगर आप केमिकल पील में किसी को देख सकते हो, इट इज ग्लाइकोलिक. देन कम्स द लैक्टिक. तो अगर सेंसिटिव स्किन है, एरिया बहुत सेंसिटिव है जहां पर आपको पील यूज करना है, एग्जाम्पल अंडर आई एरिया, अंडर आर्म्स एरिया, तो वहां पर आप लैक्टिक एसिड यूज कर सकते हो. मैंडेलिक एसिड बहुत ही ब्रिलियंट एक्सफोलिएटर, लेकिन ऐसी स्किन में जहां पर ग्लाइकोलिक नहीं यूज कर सकते. तो या तो वो एरिया, या तो स्किन बहुत सेंसिटिव है, या तो एरिया और स्किन थोड़ा सा, मतलब इट इज अ लिटिल बिट नीडेड मोर ऑफ जेंटल एक्सफोलिएशन चाहिए ऐसी जगह पे. ठीक है. देन कम्स द TCA. वी कॉल, और आई बेसिकली कॉल कि TCA को ना हम स्कार्स में, एक्ने स्कार्स में बहुत ब्रिलियंटली यूज कर सकते हैं. एंड उस फेनोमेना को वी कॉल इट एज क्रॉस. हम क्रॉस टेक्निक बोलते हैं उसे, वी कॉल इट क्रॉस, CROSS. ओके. अब उसके अलावा इसको हम यूज करते हैं एज अ बॉडी पिगमेंटेशन के लिए. तो बॉडी पील हम TCA को बुलाते हैं. TCA इज कॉल्ड एज अ बॉडी पील. ओके. नाउ TCA एक डीप पील है एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसका परसेंटेज समझना, इसकी बेसिकली समझना कि किस तरीके से आपको TCA यूज करना चाहिए. इसके साथ में हाथ से बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत मतलब बहुत ज्यादा बर्न हो जाता है, PIH हो जाता है, PIE हो जाता है, पेशेंट गेट्स लाइक अ लॉट ऑफ इचिंग, बर्निंग सेंसेशन, पूरा एरिया ब्लैक हो जाता है. इट इज अ वेरी 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 रिस्की काइंड ऑफ अ केमिकल एसिड, जिसे बहुत ध्यान से प्रॉपर टेक्निक के साथ एंड प्रॉपर परसेंटेज में ही यूज करना सबसे बेहतरीन है. अदरवाइज बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना बनी रहती है. अब इसके अलावा जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट द येलो पील. वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट, गुड एक्सफोलिएटर, अनक्लॉगिंग भी बहुत अच्छा करता है. It basically works on the textures, works on the pimples, works on the pigmentation.
तो वो बेसिकली एक्सफोलिएशन तो कर ही रहा है, एट द सेम टाइम इट हेल्प्स इन स्किन रिजुविनेशन एज वेल। तो येलो पील इस वजह से बहुत फेमस है, इसी वजह से एक्सपेंसिव भी है, यस, बट एट द सेम टाइम रिजल्ट्स भी उसके बोलते हैं, और रिजल्ट्स भी उसके बहुत खूबसूरत बोलते हैं, करेक्ट। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड पील सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस अ लिटिल बिट, ओके। ओके, आई थिंक किसी ने, आरती ने पूछा है, प्लीज रिपीट बीएचए। ओके आरती, बीएचए के अंदर में ना यू गॉट सैलिसिलिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड, ओके। हाँ, कनीज, I'll take your question at the last बेटा, है ना, I'll take your question at the last. कनीज, I've got your question, but I'll take at the last. Okay, when we will roll it up, I'll take your question. Now, when we are talking about peel safety and precautions, please understand कि safety क्यों important है peels के साथ में, because just I have mentioned कि chemical peels की वजह से burn हो सकता है। chemical peels इतना ज्यादा extensively problematic हो सकते हैं कि it can burn also, है ना। तो इसीलिए आपको केमिकल पील के साथ में सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस रखना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना विद एनीथिंग या बाकी ट्रीटमेंट। देखो हाइड्रा फेशियल में कुछ भी थोड़ा बहुत इफबाट होगा, यू कैन मैनेज इट आउट, करेक्ट। आपके साथ किसी भी फेशियल में कोई भी इश्यू होगा, यू कैन मैनेज इट आउट, बट केमिकल पील एसिड है, एसिड के साथ में इफ बट होगा तो इट कैन लीड टू वेरी वर्सनिंग ऑफ सिचुएशन, मे बी कई बार होता है बहुत एक्सेसिव डैमेज भी होता है ना। सिर्फ बात बर्निंग पे नहीं रुकती, वो इंटरनल या कई बार होता है डिस्फिगरिंग तक भी पहुंच जाती है। सो दैट कैन बी वेरी, आई विल से वेरी पेनफुल एंड वेरी, एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा परेशान कर देता है, करेक्ट। अब देखो, आप कभी भी केमिकल पील करना चाहते हो किसी भी क्लाइंट के ऊपर, whosoever it can be, किसी भी क्लाइंट के साथ में जब आप केमिकल पील, कुछ चीजें जो आपको पहले से बिफोर पील, है ना, जो याद रखने की जरूरत है, प्री ट्रीटमेंट, जो आपको सामने वाले पेशेंट को भी गाइड करने की जरूरत है, करेक्ट, वो है, देखो पील करने से पहले हमेशा एक पैच टेस्ट करना जरूरी है। कई लोग बोलेंगे अरे पैच टेस्ट कैसे करें, पैच टेस्ट में, देखो पैच टेस्ट करने में ना सिर्फ एक डॉट या आइल से ना एकदम मिनिमल, मतलब अप्रोक्सीमेटली हो सकता है ना 0.5 ml भी यूज ना हो, बस इतना ही आपको अमाउंट चाहिए एक पैच टेस्ट करने के लिए। बट अगर आप पैच टेस्ट कर लेते हो ना, तो उसकी वजह से आप बहुत ब्लंडर या बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन को रोक सकते हो। कई बार होता है पेशेंट्स आर नॉट कंपैटिबल विद द पील क्योंकि उनको एलर्जिक रिएक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है, एक्सट्रीम स्किन सेंसिटिव होने की वजह से स्किन बर्निंग का इशू हो सकता है, या फिर कई बार होता है क्लाइंट हमें हर चीज क्लियरली नहीं बताता कि वो किस टाइप की मेडिसिन के ऊपर है, किस टाइप का वो स्किन केयर यूज कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी स्किन बहुत मे भी हो सकता है बहुत फ्रिजाइल हो गई हो, बहुत पतली हो गई हो, एंड ऐसे में अगर आप केमिकल पील करोगे तो वो बहुत ज्यादा आपको परेशान और हावी हो जाएगा एंड उसमें डैमेज करेगा, है ना। इसलिए प्लीज मेक श्योर कि आप हमेशा पैच टेस्ट करो। फेस के ऊपर कभी भी केमिकल पील करना है तो डायरेक्ट फेस के ऊपर पैच टेस्ट नहीं करते हैं, है ना, ये हरकत नहीं करना। पैच टेस्ट आप कहाँ करते हो, हमेशा ईयर के पीछे, जो दोनों ईयर्स है ना उसके पीछे का जो एरिया है दैट इज ऑल्सो इक्वली सेंसिटिव, तो आप वहां पर आराम से लाइक यू कैन मूव इट इन अ सर्कल एंड आप वहां पर पैच टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड कम्स चेक द स्किन टाइप एंड सेंसिटिविटी। ऑब्वियसली आप बिना स्किन टाइप या सेंसिटिविटी या स्किन कैसी है किस तरीके के बिना वो चेक किए आप नहीं कर सकते हो केमिकल पील। आप कैसे चुनाव करोगे कि कौन सा पील करना है, सामने वाले को जरूरत है बीएचए की, सामने वाले को जरूरत है ऑयल डिजोल्विंग पील की, और आप कर रहे हो ग्लाइकोलिक, कैसे वर्कआउट करेगा। हाँ ठीक है, ग्लाइकोलिक कुछ एक्सटेंट तक, कुछ सर्टेन अमाउंट तक हेल्प करेगा, बट इट इज नॉट आइडियल, वो एक आइडियल केमिकल पील नहीं है एक्ने वालों के लिए। तो यू नीड अ सैलिसिलिक एसिड। तो दैट इज द रीजन कि स्किन की सेंसिटिविटी टाइप एंड प्रॉब्लम पता करके ही आप चीजों पे आगे बढ़ोगे, है ना। अगर फेस के ऊपर या कहीं पे भी स्किन में आपको जहां पे भी केमिकल पील करना है वहां पर किसी भी तरीके की चोट लगी हुई है, कोई भी इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन है, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, ऐसे में आप पील नहीं करोगे, नहीं तो चीजें और फ्लेयरिंग हो जाएंगी, ठीक है। कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट अगर क्लाइंट यूज कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर अपने ऊपर केमिकल पील कराना है और मैं विटामिन सी यूज करती हूँ, ठीक है, मैं विटामिन सी यूज कर रही हूँ, या मैं आई एम यूजिंग अ सीरम विद हाइलोरोनिक एसिड है, या आई एम यूजिंग अ सीरम जिसमें रेटिनॉल है, तो आई वो आपको क्लाइंट से पूछने की जरूरत है ऑब्वियसली, एंड उसके साथ में अगर आपको पता चलता है कि ऐसा कुछ है तो आपको पहले उन चीजों को रोकना है, यू हैव टू स्टॉप देम लाइक एक दिन या 2 दिन के आसपास में उसको रोकना है, एंड देन फिर आप केमिकल पील के लिए जाइए, तो आपको ब्रिलियंट रिजल्ट्स मिलेंगे, करेक्ट।
एंड आपके साथ में नुकसान भी नहीं होगा क्योंकि स्किन को आप बचा पाओगे, है ना। अब ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट बेसिकली जो चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, सबसे पहला करेक्ट पील चुनना और उसका करेक्ट परसेंटेज चुनना, ठीक है। कौन सा पील यूज करना है और कितने परसेंटेज पे यूज करना है, ये ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट यूज करना इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, इवनली अवॉइड करना। इवनली मतलब ऐसा नहीं कि किसी जगह पे डबल लेयर कर दिया, किसी पे एक लेयर किया, किसी पे ज्यादा कर दिया, कहीं पे ज्यादा थिक छोड़ दिया, कहीं पे थिन किया, नहीं। इवन लेयर होना चाहिए और सेंसिटिव एरियाज को प्रोटेक्ट करके रखना है। सेंसिटिव एरियाज मतलब कॉर्नर ऑफ द लिप्स, कॉर्नर ऑफ द नॉस्ट्रल्स, कॉर्नर ऑफ द आईज, एंड अगर कोई और एरिया प्रेजेंट है ऑन द फेस एज इन सेंसिटिव, ओके। देन कम्स स्किन रिएक्शन को मॉनिटर करना है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। कई बार होता है लोग केमिकल पील लगा के ना दूसरा काम करने चले जाते हैं, नहीं, ये हरकत बिल्कुल नहीं करना, कभी मत करना। कभी भी आप केमिकल पील अप्लाई कर रहे हैं क्लाइंट के ऊपर, पेशेंट के ऊपर, वेन एवर, या कभी भी आप ऐसा करते हैं, यू हैव टू स्टैंड, ठीक है, आपको वहीं पे खड़ा रहना है। यू हैव टू स्टैंड ऑन द हेड ऑफ द क्लाइंट एंड यू हैव टू नोट डाउन एवरीथिंग। क्लाइंट को इचिंग तो नहीं हो रही है, क्लाइंट के फेस पे रेडनेस तो नहीं दिख रही, फ्रॉस्टिंग तो जनरेट नहीं होने लग गई है, क्लाइंट को अनकंफर्ट तो नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा इचिंग इरिटेशन तो नहीं हो रहा है। Everything needs to be taken into accountability and then you need to deliver what kind of the results you are desiring। वो तभी possibility है जब आप उसकी accountability लेके उसको manage कर पाए तुरंत, है ना। तो इसी वजह से monitor the skin reaction, that is very important during the chemical peel। लास्ट आता है ओवर लेयरिंग नहीं करनी। कई बार लोगों को लगता है प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो ज्यादा कर देंगे, ज्यादा परसेंटेज से कर देंगे तो फटाफट रिजल्ट आ जाएगा, नहीं, ये सबसे बड़ा भ्रम है, ये सबसे बड़ा मिथ्या है। दिस इज द मिथ ऑफ ऑल द टाइम कि ज्यादा प्रॉब्लम है तो ज्यादा कर दो तो अच्छा हो जाएगा, नहीं, इट डजंट वर्क दैट वे। स्किन है, बॉडी है, स्किन ऑर्गन है, ठीक है, स्किन भी एक ऑर्गन है, वो अपनी सीमा, अपनी लिमिट के हिसाब से, अपनी अप्रोच के हिसाब से, अपने तरीके से स्किन वर्क करती है। उसकी अपनी एक साइकिल है, स्किन की अपनी एक साइकिल है, स्किन के सेल्स अपने तरीके से बिल्ड होते हैं। स्किन ऑल्सो नीड्स इंटरनल सपोर्ट, स्किन ऑल्सो नीड डाइट सपोर्ट, स्किन ऑल्सो नीड अदर सपोर्ट टू वर्क ब्रिलियंटली इन कॉम्बिनेशन। और ये सोचना हमारा कि ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा सारा पील करने से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, नहीं। एक प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन में, एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, एक प्रॉपर केमिकल पील जब आप करते हो ना, तो भी रिजल्ट बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही ज्यादा, एक्चुअली में टू बी वेरी, बहुत ही एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट आते हैं। ये सोचना कि हम ज्यादा करके ज्यादा ले आएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पोस्ट ट्रीटमेंट केयर, आफ्टर पील केयर में बेसिक चीजें जो याद रखने वाली हैं, ऑब्वियसली सूदनिंग जेल मतलब बेसिकली मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन, दो ऐसी चीजें हैं, बाकी सब चीजें बंद करवानी है आपको। कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज नहीं होगा, कुछ भी यूज नहीं होगा, पर सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन कंपल्शन है, वो करनी ही करनी है उनको यूज, ठीक है। स्ट्रिक्ट सनस्क्रीन यूसेज है, स्ट्रिक्ट, प्लीज मेक इट अ नोट, है ना। देन कम्स के अवॉइड सन एक्सपोजर, सन एक्सपोजर बिल्कुल नहीं हो सकता, देयर कैन नॉट बी एनी सन एक्सपोजर एट ऑल, ठीक है। डीआईवाई, घर का कोई भी डीआईवाई स्क्रब, हार्श प्रोडक्ट, कुछ भी स्किन के ऊपर नहीं यूटिलाइज करने आफ्टर अ पील, है ना। बार बार कई लोगों की आदत होती है स्किन को टच करने की अगेन एंड अगेन, वो सारी हरकतें नहीं करनी है। यू डू नॉट हैव टू आस्क द क्लाइंट कि बिल्कुल भी फेस को बार बार टच करके चेक नहीं करना है, ठीक है। अब क्या आप देख सकते हो, दो पिक्चर्स दिख रही हैं आपको, मैंने दो ही पिक्चर्स डाली, बट ऐसे और भी रीजंस हैं जहां पर केमिकल पील ना कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड का मतलब होता है यहां पर आपको पील नहीं करना है चाहे जो हो जाए। इफ बट नहीं है कि अच्छा ये ठीक कर लें तो हो जाए, अच्छा कर देंगे तो कुछ हो, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। इफ नहीं, मे नहीं, कुछ नहीं, इन एरियाज पे प्लीज नोट इट डाउन, आपको पील्स नहीं करने। कहीं पे एक्टिव इन्फेक्शन है, ठीक है, एक्टिव इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन है, ऐसे एरियाज में नहीं करना पील। कहीं पे भी ओपन वुंड्स है, कट्स है, डैमेज है, छिल गया, अब्रेजन है, कुछ भी है, वहां पे पील नहीं करना। तो कहीं पे बहुत सेंसिटिव स्किन है, डैमेज स्किन है, स्किन का बैरियर खत्म है, डैमेज हो गया है स्किन का बैरियर, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, नहीं करना पील, ठीक। फोर्थ, किसी और
ट्रीटमेंट की वजह से स्किन खराब कर ली है, PIH हो गया है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन हो गया है, प्लीज नोट दिस टिप डाउन पीपल। मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं, किसी और ट्रीटमेंट की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई, डैमेज क्रिएट हुआ, प्रॉब्लम हुआ, उसको केमिकल पील से ट्रीट करने चल देते हैं। ये हरकत नहीं करनी है, कभी नहीं करनी है। PIH पील से ट्रीट नहीं होता है, इमीडिएट में उसको दूसरा सपोर्ट चाहिए एंड दूसरे टाइप ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए टू हील। ठीक है, ये हरकत नहीं करना प्लीज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑब्वियसली प्रेगनेंसी या लैक्टेशन टाइम पे बहुत ज्यादा ऐसा मना नहीं होता, बट स्टिल यू नेवर नो कौन सा पील किस तरीके से रिएक्ट आउट कर जाए, टेरेटोजेनेटिक इफेक्ट दिखें या फिर अनकंफर्ट हो जाए, इरिटेशन हो जाए, एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, स्किन डैमेज हो जाए, तो प्रेगनेंसी या लैक्टेशन के बाद ही वी कैन गो फॉर द पील्स एंड नॉट बिफोर दैट। प्लीज मेक इट अ नोट, ओके। नाउ सबसे कॉमन मिस्टेक्स जिनको अवॉइड करना ही करना है ताकि आप प्रॉब्लम में ना फंसो और क्लाइंट कभी आपको परेशान ना करे। नंबर 1, हाई परसेंटेज एसिड यूज करना बिना किसी नॉलेज, बिना किसी प्रैक्टिस, बिना किसी गाइडेंस या बिना किसी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिना किसी नॉलेज के, टू ये समझे बिना कि हाई परसेंटेज को कैसे मैनेज करना है, कैसे नोट डाउन करना है, कितना करना है, कहाँ करना है, उसके बिना अगर आप करते हो तो यस इट इज अ ब्लंडर एंड उसकी वजह से एक्सट्रीम कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं। पैच टेस्ट को स्किप कर देना, मेनी ऑफ द पीपल इनिशियली आई टेल यू याद नहीं रहता है ना, मेन प्रॉब्लम याद नहीं रहता। प्लीज लिख के रखो, नहीं अपने केमिकल बॉक्स के ऊपर लिख के रखो कि जब भी वहां से निकालो तो याद आ जाएगा। ठीक है, प्लीज मेक इट अ नोट, प्लीज मेक इट अ नोट कि आप बिना पैच टेस्ट के कोई भी केमिकल पील किसी भी ऊपर यूज ना करो, इट्स अ रिक्वेस्ट, ओके। ओवर एक्सफोलिएट करना, मतलब आप 3-4 पील्स एक ही दिन पे करने की कोशिश कर रहे हो ताकि फटाफट रिजल्ट मिल जाए, ये हरकत मत करना, स्किन बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगी, बैरियर बहुत ज्यादा डैमेज आउट हो जाएगा एंड फिर उसको ट्रीट करना उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड आफ्टर केयर, पोस्ट केयर, क्लाइंट को आपको गाइड नहीं करना प्रॉपरली, क्लाइंट को आपने गाइड ही नहीं किया, क्लाइंट को आपने बताया ही नहीं कि किस तरीके से पोस्ट केयर करना है, किस तरीके से आप उसकी हेल्प कर सकते हो, किस तरीके से उसे पोस्ट केयर जब वो फॉलो करेगा तो उस केमिकल पील का, उस केमिकल एसिड का उसको रिजल्ट 5 टाइम्स ज्यादा मिलेगा, बट आप वो उसको समझाते ही नहीं हो एंड उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स फेस करते हो। ठीक है, नाउ लास्ट we have not last, basically we are moving forward with it। तो ट्रीटमेंट के स्टेप्स होते हैं, तो एक्ने ट्रीटमेंट में देखो हम एक्ने की बात कर रहे हैं तो मैं स्पेसिफिकली सिर्फ एक एक्ने के ट्रीटमेंट के स्टेप्स आई एम टॉकिंग अबाउट, देयर आर रेस्ट अदर आल्सो कि और किस में कैसे यूज करते हैं, बट एक्ने का हम क्योंकि बात कर रहे हैं तो उसमें जो हमारा गोल है, ट्रीटमेंट का गोल क्या है, देखो एक्ने के अंदर में हमें क्या चाहिए, एक्ने हुआ क्यों, क्लॉगिंग की वजह से। ठीक है, तो हमें एक तो उसे अनक्लॉग करना है, नंबर 1। सेकेंड, क्लॉगिंग हुआ तो उसमें क्या हो रहा था, सीबम बना ही जा रहा था, सिबेशियस ग्लैंड, तो सिबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी को थोड़ा रिड्यूस करेंगे तो भी मदद मिलेगी। थर्ड, वहां क्योंकि ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ती जा रही थी वहां बैक्टीरिया बनने लगा, तो हमें बैक्टीरिया मारना है, तो बैक्टीरिया का ओवरलोड या बैक्टीरिया का जो लोड है उसे डाउन करना है। फिर आया कि वहां पे उस वजह से हीलिंग ट्रिगर हुई, इन्फ्लेमेशन ट्रिगर हुआ, तो उस वजह से पेन प्रॉब्लम वो सारी चीजें इश्यूज आ रही थी, तो उस सबको भी काम डाउन करना है। करेक्ट, तो ट्रीटमेंट हम किस उद्देश्य से कर रहे हैं, किस रीजन से कर रहे हैं वो पता होना जरूरी है ताकि हम केमिकल पील करेक्ट चुन सकें, है ना। तो अगर आप देखोगे तो एक्ने के अंदर में हमारे जो बेसिक क्राइटेरियाज हैं वो ये हैं, और ये जब मैच हो जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हम चूज करते हैं पील। ठीक है, बेसिक ट्रीटमेंट स्टेप्स हैं, चाहो तो नोट डाउन कर लो, चाहो तो व्हाटएवर यू कैन कीप इट फॉर योरसेल्फ, ये बेसिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। ठीक है, मैं एकदम एग्जैक्ट टाइप नहीं बोल रही हूँ, बट दिस इज लाइक हाउ यू नीड टू परफॉर्म इट। नंबर 1, क्लेंजिंग, डीप क्लेंजिंग करनी है, अगर कोई मेकअप पहन के आया तो मेकअप रिमूव भी करना है, तो क्लेंजिंग की वजह से ऑयल डर्ट इंप्योरिटीज रिमूव ऑफ करना है एंड वी नीड टू क्रिएट अ बेस फॉर द अपकमिंग ट्रीटमेंट। सेकेंड, स्किन को एनालाइज करो, कई बार स्किन के ऊपर सनस्क्रीन लगी हुई है, कई बार स्किन के ऊपर कुछ और लगा हुआ है, मेकअप लगा हुआ है, तो स्किन का डीप एनालिसिस नहीं हो पाता, तो प्रॉपर क्लेंजिंग करने के बाद यू कैन डू एक वापस से रीअसेस कर लो स्किन को, क्योंकि कंसल्टेशन के टाइम पे तो आपने की ही थी, बट अगेन वापस से एक बार देख लो जस्ट टू बी श्योर कि जो आपने एनालिसिस किया था वो सही है। ठीक,
ऑयल लेवल चेक कर लो, सेंसिटिविटी चेक कर लो, रेडनेस देख लो, एक्टिव लीजन तो नहीं है वो देख लो, किसी तरीके का कट वुंड्स तो नहीं है, किसी तरीके का एक्टिव इन्फेक्शन तो नहीं है, लुक आउट फॉर एवरीथिंग, ठीक। देन कम्स द एक्सफोलिएशन पील। एक्सफोलिएशन पील बेसिकली बहुत ही वेरी सुपरफिशियल पील, याद है हमने टाइप्स में पढ़ा था, तो एकदम वेरी वेरी सुपरफिशियल पील जो है हम उसके हेल्प से एकदम बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही हल्का से एक एक्सफोलिएशन डन करेंगे। क्योंकि जब हम नेक्स्ट जो हमारा मेजर पील है, जो हमारा एक्चुअल पील है फॉर द एक्ने, दैट इज सैलिसिलिक एसिड, जब हम उसका एप्लीकेशन करें तो उसका पेनिट्रेशन बेटर हो, डेप्थ बेटर रीच करे, अनक्लॉगिंग बेटर हो एंड हमारा रिजल्ट बेटर आए, ठीक है। सो थर्ड स्टेप जाता है वेरी वेरी सुपरफिशियल एक्सफोलिएशन पील, हमने अप्लाई किया, उसको क्लियर ऑफ किया। देन हम जाते हैं ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स पे, जिसके अंदर में आता है हमारा सैलिसिलिक एसिड, जिसकी वजह से हम ऑयल कंट्रोल एंड एक्ने कंट्रोल्स कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हाइड्रेशन एंड प्रोटेक्शन। जब हमने पील कर लिया उसको प्रॉपरली रिमूव करेंगे, स्किन को काम डाउन करेंगे, तो यू कैन गिव द आइस पैक, यू कैन डू द आइस रोल्स, यू कैन डू द आइस ग्लोब्स। वो करने के बाद में यू कैन अप्लाई मॉइस्चराइजर प्लस सनस्क्रीन, ओके। तो नॉन कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर होना चाहिए, एसपीएफ होना ही चाहिए, जिसकी वजह से स्किन बैरियर और प्रोटेक्शन दोनों को हम मेंटेन कर सकें, करेक्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लाइंट को प्रॉपर पोस्ट केयर इंस्ट्रक्शंस देने हैं। जब आप ये सारे स्टेप्स प्रॉपरली बिना भूले, बिना किसी इशू के क्रॉस कर लेते हो, तो एंड में यू गेट ब्यूटिफुल रिजल्ट्स। ब्यूटिफुल मीन्स ब्यूटिफुल रिजल्ट्स एट द एंड, ओके। नाउ major important thing, I think it is important to understand that and it was important to note down as per. देखो पील्स हर कोई करना चाह रहा है, पील्स हो सकता है आप सीख भी जाओ, कर भी लो, बट ऐसे में क्या फायदा आपकी नॉलेज का सीखने का जब आप क्लाइंट को कन्विंस ही नहीं कर पा रहे हो, जब आप क्लाइंट को ये बता या वो ट्रस्ट नहीं जनरेट कर पा रहे हो कि क्लाइंट पे करके आपके पास वो चीजें कराए। कहां से आती है वो चीजें? फ्रॉम वेयर डज इट कम? इट कम्स फ्रॉम प्रॉपर नॉलेज, and second proper use of words, and third proper consultation, ठीक। please make it a habit and a note with yourself कि sit with the client at least for 5-10 minutes। कई लोग see मेरी जो consultation चलती है, when I am sitting with a client for a consultation, it takes approximately 20 minutes to 25 minutes, कई बार होता है 40 मिनट भी हो जाता है अगर इशू बड़ा है। तो कंसल्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका सिर्फ एक ही रीजन है, रीजन बीइंग क्योंकि उसी कंसल्टेशन के दौरान में ना वी आर डूइंग स्किन एनालिसिस, हम स्किन असेसमेंट कर रहे हैं। कंसल्टेशन में मैं उसका ना बैकग्राउंड समझ रही हूँ, आई एम टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट विद एक्ने, ठीक है, सिर्फ फोकस एक्ने पे रखना। तो उस कंसल्टेशन के दौरान में ना आई ट्राई टू फिगर आउट उसकी इंटरनल हेल्थ भी, है ना, इफ शी इज अ फीमेल और स्पेसिफिकली टीनेजर है, मिड एज है, ओल्ड एज है, और अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए, कभी नहीं थे पिंपल्स, तो क्या चेंज हुआ बॉडी में, प्यूबर्टी हिट हुई है कि मेनोपॉज हिट हुआ है कि बेसिकली प्रेगनेंसी हिट हुई है, या फिर आफ्टर मैरिज इफेक्ट्स हैं, या व्हाट्सोएवर, इट कैन बी समथिंग एल्स एज वेल, ठीक है, स्ट्रेस ज्यादा बढ़ गया है या समथिंग एल्स, ठीक है। सो आई फाइंड आउट द एवरी पॉसिबल कॉज, आई आस्क एवरी पॉसिबल कॉज, ताकि मैं पता कर सकूं मेरा मेजर फॉल्ट कहाँ है एक्ने का, एंड उसको मैं ट्रीट कर सकूं, ठीक है, तभी मुझे एक बेस्ट रिजल्ट मिलेगा एंड में। देन उसके बाद में जब मैं स्किन असेसमेंट कर रही हूँ, तो उसके स्किन का टाइप क्या है, उसके स्किन में प्रॉब्लम्स और क्या है, उसके स्किन में कोई और इश्यूज तो नहीं है, क्लाइंट मेरी मेडिकली फिट है या नहीं है, प्रेग्नेंट नहीं है, लैक्टेटिंग नहीं है, कोई और किसी और तरीके की बीमारी नहीं है, आई नीड टू आस्क एवरीथिंग विद द क्लाइंट। उसके बाद में जब मैं स्किन असेसमेंट करूंगी, तो स्किन मेरी टाइप क्या है, उसमें कोई और लाइक स्किन में बैरियर डैमेज तो नहीं है, स्किन में कोई और वुंड या फिर कोई और एक्टिव इन्फेक्शन तो नहीं है, एवरीथिंग। सो ये बेसिकली इनिशियल 20-25 मिनट्स डिसाइड करेंगे मेरा ट्रीटमेंट कोर्स, ये डिसाइड करेंगे कि मैं क्लाइंट को क्या गाइड करूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो क्लाइंट है, एक्ने पेशेंट है, 26 ईयर्स ओल्ड है, पहले भी एक्ने रहे हैं, बट बीच में ठीक हो गए थे, वापस होने लगे, क्यों? चेंज ऑफ सिटी हुआ, जॉब की वजह से खाने पीने में डिस्टर्बेंस आया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, खाने पीने में ऑब्वियसली बाहर का पैकेट कहीं चल रहा है वो। सो व्हेन आई एम टॉकिंग विद द क्लाइंट, क्लाइंट हैज टोल्ड मी ऑलरेडी कि उसका इंटरनल इश्यूज में ये सब चल रहा है, तो ऑब्वियसली आई ट्राई टू फिगर आउट, तो मैं उसको उस तरीके से गाइड करने की कोशिश करूंगी कि कैसे वो उन चीजों को बेटर कर सकते हैं, एट द सेम टाइम एक्सटर्नली करें।
सॉरी एक्सटर्नली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नली कौन सा केमिकल पील उनके लिए बेस्ट सूटेबल रहेगा, दैट आई विल डिसाइड। वो कैसे होगा कि पहले भी उनको एक्ने रहे हैं तो पहले उन्होंने कोई ट्रीटमेंट करवाया था या नहीं, करेक्ट। देखो मैं बहुत सारी चीजें टेलिंग यू और टॉकिंग अबाउट, तो क्या हो रहा है ना, कई लोगों को बहुत कंफ्यूजन भी हो रहा है कि कंसल्टेशन में हम इतनी चीजें कैसे याद रखेंगे। तो व्हाट यू गाइस कैन डू, यू गाइस कैन डाउनलोड ग्रे स्किन एकेडमी का ऐप, आप डाउनलोड कर लो, ठीक है, ऐप स्टोर पे मिल जाएगा बहुत इजीली। उसके अंदर में ना कंसल्टेशन फॉर्म्स, कंसेंट फॉर्म्स, ठीक है, यस कंसेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप पील्स फेशियल्स कुछ भी करो ना, हमेशा क्लाइंट को बता के, क्लाइंट से सिग्नेचर लेके तब क्लाइंट को अंदर लेना है। वो एक बेसिक प्रोटोकॉल है, प्लीज फॉलो करो। बिफोर आफ्टर पिक्चर्स रखना जरूरी है, ठीक है। जब आप इस तरीके से कंसल्टेशन फॉर्म, कंसेंट फॉर्म, बिफोर आफ्टर पिक्चर्स रखते हो ना, तो एक क्लाइंट का पूरा ना आप एक तरीके से ना एक होली कंप्लीटली आप एक तरीके से प्रोफेशनली वर्क कर रहे हो। एंड ऐसे में आपके पास हर एक चीज का, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन, आंसर आपका खुद का एक बिफोर आफ्टर, मतलब आपका खुद का एक पोर्टफोलियो रेडी हो जाता है, जिसके बेसिस पे नेक्स्ट अदर पेशेंट्स कैन ऑल्सो ट्रस्ट यू, फाइन। बट स्टिल आई एम टॉकिंग अबाउट, जब हम बात कर रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, बिफोर आफ्टर फोटोज इंपॉर्टेंट है, कंसल्टेशन फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, कंसेंट फॉर्म। तो ग्रे स्किन एकेडमी ऐप आप डाउनलोड कर लो, उसके अंदर में आपको फ्री वाले कॉलम में यू विल गेट ये सारे आपको मिल जाएंगे, फॉर्म्स मिल जाएंगे, कंसेंट फॉर्म मिल जाएगा, कंसल्टेशन फॉर्म्स मिल जाएंगे, सब मिल जाएगा। तो क्या होगा, आपको इजीली, आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, यू वोंट हैव टू लुक आउट कि हम क्या करें क्या नहीं करें, एंड सिर्फ चैट जीपीटी पर रिलाई नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। तो वी आर हियर टू हेल्प यू आउट एंड वी हैव मेड इट इजी फॉर यू, हमने आपके लिए उसको इजी कर दिया है। सिर्फ ग्रे स्किन एकेडमी को आप डाउनलोड करो एंड उसके अंदर में आपको फ्री सेक्शन के अंदर में मिल जाएगा। स्टिल कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन या क्वेरी होता है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, वी कैन हेल्प यू आउट, ठीक है, वी आर ऑलवेज हियर फॉर यू। Now, next we are talking about consultation. Yes, it gives out client की history लेना, very important. ठीक है, हमने just अभी we just had this कि skin के concern क्या है। देखो, and majorly consultation के time पे ना कोशिश ये करो हमेशा, let the client speak. उसको अपने मन का ना निकाल लेने दो। Reason, क्योंकि जब वो बोलेगा ना, जब वो बोल रहा होता है, तो उसी के बीच में you get hints, उसी के बीच में you get clues कि ये कितना स्किन केयर फॉलो करेगा या करेगी, मैं जो भी इंस्ट्रक्शंस दूंगी तो ये फॉलो करेगा या करेगी, या ये कितना स्पेंडिंग कैपेसिटी रखते हैं, या ये कितना फ्रस्ट्रेटेड है, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, या ये सब कुछ करवा चुका है स्टिल उसको रिजल्ट नहीं है, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट है, कुछ चीज डिटेक्ट नहीं हुई है। तो वो सारी चीजें उस कंसल्टेशन में आपको पकड़ लेनी है। तो इसीलिए क्लाइंट हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग स्किन कंसर्न, करेंट स्किन केयर प्रोडक्ट, लाइफस्टाइल, मेडिकल हिस्ट्री, हर एक चीज, हर रेलेवेंट क्वेश्चन आपको पूछना है। Okay. Now, if you see over here, can you see this is basically an AI tool to do the facial analysis. Okay, it does the facial analysis. I have it over here. आपके पास नहीं है तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको खरीदना ही है, नहीं। इसके छोटे वर्जन्स भी आते हैं, डर्मास्कोप्स वगैरह भी आते हैं, तो वो भी आप ले सकते हो, जो लैपटॉप या कंप्यूटर्स में कनेक्ट हो जाता है, उसके थ्रू भी आप देख सकते हो, वो भी आपको डिजिटली विजुअलाइज होता है, ठीक है। बट मेरे पास क्योंकि ये है तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ स्नीक पीक कि ये जो है एआई मॉडल है या जो एआई ट्रैकर है, स्किन एनालाइजर है, इसमें बेसिकली जब हम एनालाइज करते हैं तो डिफरेंट लाइट्स के अंदर में, पोलराइज लाइट, नॉन पोलराइज लाइट, यूवी लाइट, इंफ्रारेड लाइट, ये डिफरेंट लाइट्स के अंदर में स्किन को कंप्लीटली ना एनालाइज करता है। एंड इसमें आप देख रहे हो साइड में 12 पिक्चर्स दी हुई है, इस तरीके से ये डिफरेंट पिक्चर्स क्रिएट ऑफ करके बताता है कि कितने परसेंटेज ऑफ स्किन डैमेज है, कितना एक्ने है, कितने रिंकल्स आउट है, कितनी बाकी प्रॉब्लम्स है, सारे प्रॉब्लम्स को ये इस तरीके से हीट ऑफ द मैप में, चीजों में ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो कितना परसेंटेज, कितना पिंपल, मतलब आपको पिगमेंटेशन का इशू है वो भी आप देख सकते हो, कितना पिंपल का इशू है वो भी आप देख सकते हो, कहाँ कहाँ पे पिंपल है वो भी आप समझ सकते हो, कहाँ पे पिगमेंटेशन सुपरफिशियल है, कहाँ डीप है, वो भी आप इसके थ्रू समझ सकते हो, करेक्ट। तो कंसल्टेशन के साथ साथ में स्किन असेसमेंट एंड एनालिसिस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। एंड जब आप कोई भी ऐसी चीज जो क्लाइंट को आप दिखा सको, ठीक है, आप बोल रहे हो, बता रहे हो, क्लाइंट डेफिनेटली समझेगा, बट हो सकता है उतना इजिली नहीं कन्विंस हो। बट अगर आप कोई चीज उसको दिखा दो कि ये देखिए, ये आपका पिंपल है, देखिए कितना डीप है, कितना खराब दिख रहा है, कि कितना सारा है, कितना इशू क्रिएट, तो व्हेन द क्लाइंट कैन विजुअलाइज इट, वो हमेशा उस चीज को लेके पॉजिटिव रहेगा और पॉजिटिवली आपके ट्रीटमेंट को भी एक्सेप्ट करेगा और ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो
दैट इज माई बेसिक कंसर्न. अगर आपके पास ये मशीन नहीं है कोई बात नहीं, बट टेक अ बेसिक, बहुत एक छोटा बेसिक मशीन्स भी आते हैं, डर्मास्कोप्स वगैरह आते हैं, वो प्लीज रखिए. एनालाइज कीजिए, एनालिसिस कीजिए, क्लाइंट को दिखाइए, एंड देन टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट, एंड यस लेटर ऑन द मनी पार्ट एज वेल. ठीक है. अब देखो क्लाइंट की ना एक्सपेक्टेशंस ना बहुत डिफरेंट होती हैं. ठीक, क्लाइंट एक्सपेक्ट करेगा कि जब पहली सिटिंग के लिए आया है ना, होता होगा आपके साथ भी हुआ होगा, एंड इट विल बी वेरी कॉमन, इट इज वेरी कॉमन. क्लाइंट जब आते हैं तो उनका ये रहता है कि ये ना मेरा पूरा ठीक कर दो, आप एक सिटिंग, मतलब आप ये फेशियल कर दो, इससे ठीक कर दो. आते कई बार आते हैं, तो आपको उनको कन्विंस करना पड़ता है कि नहीं ये फेशियल से नहीं होगा, इसके लिए आपको केमिकल एसिड्स कराने पड़ेंगे, बस उसमें भी नंबर ऑफ सेशंस लगेंगे. वो आप कैसे डिसाइड करो, आप ऐसे डायरेक्टली बोल दो नहीं नहीं इससे नहीं होगा, आप ये करवाओ इससे होगा, इसका इतना पैसा लगता है, क्लाइंट करवाएगा नहीं. सो व्हाट कम्स इनटू हैंडी इस टाइम पे, वो आपकी नॉलेज काम आती है. आपको क्लाइंट के साथ कंसल्ट कि ठीक है, यू वांट मी डू द फेशियल, आई विल डू द फेशियल, but facials are for skin rejuvenation, facial are for skin upliftment, facial are for the basically helping out the skin to like resurfacing के लिए, for that all reasons. but ये ट्रीटमेंट नहीं है. ट्रीटमेंट्स आर डिफरेंट जो आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन देंगे, चाहे वो पिंपल हो, पिगमेंटेशन हो, डार्क सर्कल्स हो, मेलास्मास हो, व्हाट नॉट. उसके लिए आपको ट्रीटमेंट चाहिए. उसमें व्हाट गोज बेस्ट फॉर यू, बिकॉज आपको एक्ने प्रॉब्लम हो रहा है, यू कैन गो विद द केमिकल पील्स, ये आपको ब्रिलियंट रिजल्ट देगा. बट प्लीज अंडरस्टैंड, सिंगल सेशन में वो रिजल्ट आप नहीं अचीव करोगे जो आप टेलीविजन पे या जो आप किसी को देख कर आ रहे हो. नहीं, बिफोर आफ्टर नहीं चल रहा है. केमिकल पील टेक्स टाइम. स्किन केयर, आपका इंटरनल हेल्थ, एक्ने होने का मेजर कारण, वो सारी चीजें जब तक सॉल्व नहीं होंगी, पिंपल में उतना ब्रिलियंट रिजल्ट नहीं आएगा. और वो अचीव करने के लिए आई एम सिटिंग हियर फॉर यू, आई एम हेल्पिंग यू आउट, आई एम टेलिंग यू, तो उस तरीके से आप फॉलो करोगे, यू विल ऑलवेज गेट द रिजल्ट. आपको इस तरीके से क्लाइंट को कन्विंस करना है, आपको इस तरीके से क्लाइंट्स के साथ बात करनी है, आपको इस तरीके से क्लाइंट को रीच आउट करना है, नॉट डायरेक्टली, नॉट समथिंग ऑन द फेस, या आप एकदम से नहीं ऑल आउट हो सकते हो. ठीक, कई बार होता है क्लाइंट खुद आते हैं, खुद पील्स डिमांड करते हैं. अब ऐसे में आपको स्किन एनालाइज करना है, प्रॉपरली देखना है, समझना है कि क्या उनकी स्किन रेडी है पील के लिए. अगर नहीं है, प्लीज मेक श्योर माय डियर फ्रेंड्स, मना करने की भी आदत होनी चाहिए. हर एक केस को हाँ करके अपने गले में घंटी नहीं बांधनी है ना. हर एक चीज के लिए आप नहीं है, हर एक चीज को आपको उतने तरीके से नहीं फॉलो अप में रखना है. करेक्ट. सो प्लीज मेक दिस अ हैबिट कि आप ट्रैक करो. पूरा कंसल्टेशन आपने किया, बट उसके बाद में रिजल्ट ट्रैकिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. तो कितने सेशंस क्लाइंट ने लिए, स्किन केयर फॉलो कर रहा है या नहीं, बिफोर आफ्टर पिक्चर्स है मेरे पास, कंसेंट है साइन मेरे पास, वो कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट उसे सूट नहीं कर रहा है या कर रहे हैं, वो सारी चीजों का आपके पास में एंट्रीज, ये चीजें होनी चाहिए. करेक्ट. सो प्लीज मेक इट अ पॉइंट कि कंसल्टेशन तो आपने किया, ट्रीटमेंट भी किया, करेक्ट, बट उसके बाद में रिजल्ट को भी प्रॉपरली ट्रैक करना है. क्योंकि जब यहां से यहां जाती है ना स्किन, क्लाइंट्स आर सो हैप्पी, क्लाइंट्स आर सो लाइक ऑन द मून 7 कि आप उस टाइम पे रिव्यूज मांगोगे, आप उस टाइम पे फोटोग्राफ्स मांगोगे, उस टाइम पे आप उनसे यू विल आस्क फॉर अ वीडियो रिव्यूज और यू आस्क फॉर फोटोग्राफ्स. वो इतने खुशी आपको देंगे ना कि यू विल बी लाइक ओके, आई हैव अचीव्ड समथिंग. एंड यस, आई एम टेलिंग यू, खुद को भी बहुत ही ब्रिलियंटली बहुत अच्छा फील होता है. करेक्ट. So now we are taking up this last topic, and I think then we'll take up the questions as promised. देखो कई लोगों को होता है ना कि पिंपल्स हो रहे हैं मतलब ऑयली स्किन, पिंपल है तो ऑयली स्किन ही होगा, ऑयली स्किन है तो पिंपल होगा ही होगा. ऐसा नहीं है. आई हैव ऑयली स्किन बट आई हैव नो पिंपल्स, टच वुड. ठीक है. हाँ, सडन हियर एंड देयर गर्ल्स के अंदर में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर थोड़े बहुत ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, दैट इज नॉर्मल, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से इफ बट ब्रेकआउट्स होते हैं. बट यू ऑल्सो नो कि ड्राई स्किन के अंदर भी पिंपल्स हो सकते हैं. एज यू सी इट ऑन योर स्क्रीन, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, बैरियर डैमेज होगा. ठीक है. बैरियर डैमेज मतलब आपकी स्किन ड्राई थी, ड्राई स्किन की वजह से वीक हुआ, स्किन बैरियर डैमेज हो गया, इरिटेट हुआ, एंड उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हुआ, एंड दैट लेड टू पिंपल. छोटे छोटे पिंपल्स होंगे, बहुत माइन्यूट, बहुत छोटे छोटे से, बट होंगे. तो ड्राई स्किन के ऊपर बैरियर डैमेज की वजह से पिंपल हो सकता है. सेकेंड, क्योंकि स्किन इतनी ड्राई है, इतनी ज्यादा फ्लेकी हो रही है कि इतना ज्यादा फ्लेक आउट करने लगी, क्लॉगिंग हो गई, एंड उस क्लॉगिंग की वजह से पिंपल डेवलप हो गया.
okay? Especially blackheads and whiteheads. Wrong skin care. सामने वाले ने समझ नहीं आया या उसको फील नहीं हुआ या डोंट नो या किसी ने सजेस्ट किया, किसी इन्फ्लुएंसर को देख लिया, कहीं किसी एडवर्टाइजमेंट में देख लिया एंड दे स्टार्टेड यूजिंग रॉन्ग प्रोडक्ट्स फॉर देयर फेस एंड उसकी वजह से कॉमेडोजेनिक इफेक्ट हो गया एंड द पिंपल्स स्टार्टेड कमिंग. देन नेक्स्ट, ड्राई स्किन ऑलरेडी थी, ओवर क्लेंजिंग, ओवर एक्सफोलिएशन कर लिया. It basically led to barrier damage, it led to pimples. Next comes internal factor. Obviously dry हो रही है skin, but अगर internally the hormones are disbalanced, the periods are irregular, the things are not working in your favor, whatsoever, stress की वजह से हो गया, you got the pimples whether you have dry skin or not. So dry skin acne free रहेगी हमेशा, not possible. Oily skin हमेशा acne वाली रहेगी, not. It's not what it looks like. ठीक है. जेंटल एक्सफोलिएशन हमेशा हेल्प करता है डेड स्किन को रिमूव करके अनक्लॉगिंग के लिए, तो दैट नीड्स टू बी देयर. ड्राई स्किन के अंदर में हाइड्रेशन सबसे मेजर की पॉइंट है जिसको कभी नहीं भूलना है. तो चाहे बैरियर रिपेयर मतलब सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर्स हो, आपके हेलुरोनिक एसिड वाले सेरम्स हो, या इवन मोर और मच बेटर सेरामाइड्स रिलेटेड, पेप्टाइड रिलेटेड उनके सेरम्स हो. So that always helps in balancing the skin up and giving you the best of the results. Correct? So please make it a note down, my dear friends, कि सिर्फ oily skin होगा तभी pimples होंगे, नहीं. आज के टाइम पे हम जैसे मेरी प्रैक्टिस में हम लोग देखते हैं, हमारे पास में इवन 55 years old, 50 years old भी लेडीज आ रही हैं जो मेनोपॉज हिट कर रही है और उसके बाद उन्हें पिंपल्स हो रहे हैं. तो वी कॉल देम एज अडल्ट एक्ने. उसमें भी कई बार केमिकल पील्स बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, दे वर्क्स वंडरफुली. तो ऐसे में क्या होता है ना, हम सिर्फ सैलिसिलिक एसिड पे निर्भर नहीं रहते, वी चूज येलो पील आल्सो देयर. तो उसमें क्या हो गया, स्किन रिजुविनेशन भी हो गया, पिंपल्स भी फाइट आउट हो गए, फाइन लाइंस रिंकल्स भी फाइट आउट हो गई, स्किन भी बेटर फील कर रही है एंड द क्लाइंट इज आल्सो हैप्पी. ओके, नाउ इसमें ना देखो दो चीजें जो आपको मेजरली समझने की या याद रखने की, या एक तरीके से बोला जाए ना अंडरस्टैंड करने की जरूरत है. Okay, and what is that? See, when we are talking about pimples की बात कर रहे हैं, या फिर when we are talking about the chemical peels और acids की जब हम बात कर रहे हैं, please make it a note, कोई भी एसिड किसी भी कंडीशन पे नहीं करना है. पर्टिकुलर कंडीशन के लिए पर्टिकुलर केमिकल पील्स एंड एसिड्स हैं, चूज देम वाइजली. नंबर 2, परसेंटेज डिपेंड करता है नंबर ऑफ सेशंस के अकॉर्डिंग, टाइप ऑफ स्किन के अकॉर्डिंग, क्या टाइप है स्किन का एंड कितना बिगेस्ट या क्या प्रॉब्लम है कौन से एरिया में. ठीक है, अबाउट दैट. एंड थर्ड मेजर इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक इट अ नोट, ज्यादा परसेंटेज यूज करने से, ज्यादा लेयरिंग करने से, ओवरली उसको यूज करने से बेटर रिजल्ट नहीं आएगा. यू नीड टू नो कब केमिकल पील करना है, कितने ड्यूरेशन में करना है, कितने नंबर ऑफ सेशंस लगेंगे, एंड इन बिटवीन में मुझे क्या स्किन केयर देना है, या इंटरनल जो इशू है उसको कैसे फाइट करना है. व्हेन यू डू दिस, जब आप एक पूरा होलिस्टिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो, इंटरनल एक्सटर्नल, तब जाके आपको एक्ने से फ्रीडम मिलती है, तब जाके यू गेट गुड रिजल्ट्स विद एक्ने. I have multiple patients with me, especially girls. I'm telling you, especially girls ऐसी मुझे मिली हैं, उनको मालूम ही नहीं था कि उनको PCOD प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से स्पेशली जॉ एरिया उनका ना भरा हुआ था पिंपल से, एंड दे वर यूजिंग एवरीथिंग. वो ऐसा नहीं है कि दे वर नॉट यूजिंग एवरीथिंग, दे वर नॉट फॉलोइंग द थिंग्स, या वो ट्रीटमेंट करा रहे थे तो उससे उनका रिजल्ट मिलता था, कुछ दिन रहा, उसके बाद वो फिर रिपीट मतलब वापस होने लगते थे पिंपल. रीजन क्योंकि मेजर जो इंटरनल एक कॉज फैक्टर था वो जा ही नहीं रहा था. देन वी स्टार्टेड देम, फिर हमने उनको न्यूट्रिशन के थ्रू कनेक्ट किया, हमने उनको फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू कनेक्ट किया, हमने उनकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को हेल्प किया, स्लीप बेटर करवाया. यस, इट टुक टाइम, आई अंडरस्टैंड. एक हफ्ते में नहीं हुआ, एक महीने में नहीं हुआ, आई एम टेलिंग यू, नहीं हुआ. इट टुक टाइम, बट ग्रेजुअली जब वो इंप्रूवमेंट हुआ, तो वो जब रिजल्ट आया, सो इट वॉज द लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट. क्योंकि बाय दैट टाइम, उतने टाइम तक क्या हुआ, द पर्सन वो खुद की बॉडी भी समझने लगा. उनको ये समझ आ गया कि अच्छा फूड में मुझे क्या वर्क कर रहा है, ओके डाइट में मुझे क्या वर्क कर रहा है, मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, मुझे किस तरीके से रहना है.
वो मेरी स्किन को कैसे इफेक्ट कर रहा है, वो सारी चीजों को हमने बेसिकली चार्ट के फॉर्म में भी क्रिएटेड देम, हमने पूरा एक सिनेरियो उनको क्रिएट करके उनको हैंड ओवर किया, एंड वी आस्क्ड 6 months ऑफ देयर टाइम। ठीक है, कई सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं, मैं तो इवन आई टेक द गारंटी ऑल्सो, अगर सामने वाला फुल गारंटी लेता है ना कि नहीं मैं सब करूंगी या मैं सब करूंगा, तो वी इवन चैलेंज देम, हम 90 डेज में एक्ने गायब करते हैं। 90 डेज में वी हेल्प द क्लाइंट टू मतलब रिड्यूस आउट द एक्ने कंप्लीटली। बट वो तभी पॉसिबल है जब सामने वाला या क्लाइंट भी मेरे साथ 1-on-1 वर्क कर रहा है। इफ आई एम टेकिंग फुल एफर्ट, मैं क्लाइंट के साथ में फुल एफर्ट में हूँ, उसका डाइट में मैनेज कर दे रहे हैं, ओके विल मैनेज द डाइट, विल मैनेज एवरीथिंग फॉर देम, उनके सप्लीमेंट्स भी इवन, यस सप्लीमेंट्स आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। आज के टाइम पे कुछ ऐसे फूड आइटम्स है, कई बार उतना पोटेंशियल न्यूट्रिशन या उतना पोटेंशियल चीजें आपको नहीं मिल रही हैं, तो कुछ चीजों को, सर्टेन सप्लीमेंट्स को हमें बाहर से इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, वो चाहे D3 हो, B12 हो, विटामिन C हो, आयरन हो एंड व्हाट नॉट। तो वो हम जब इनकॉर्पोरेट करते हैं, उनकी डाइट को हम बेटर करते हैं, स्लीप साइकिल हम बेटर इंप्रूव कराते हैं, हम थोड़ा सा स्क्रीन टाइम कम कर रहे हैं, हम स्किन केयर इन्वॉल्व आउट कर रहे हैं, एंड यस ट्रीटमेंट तो है ही ऑफ कोर्स। ये सारी चीजें जब उनके साथ में हम वर्कआउट करते हैं तो कई बार many times we have seen improvement within 30 days and good result within 3 months। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो लंबा समय लेते हैं, and that is normal, natural, because every skin is different, every person is different, उस वजह से। बट एक्ने के अंदर में एसिड्स वर्क ब्रिलियंटली, सिर्फ यूज करने का, नंबर ऑफ सेशंस का, कितने टाइम ड्यूरेशन में यूज करना है, उसका थोड़ा बहुत अगर आपको जानकारी होता है, यू गेट ब्यूटिफुल रिजल्ट्स। Correct? Okay, I'll take the questions now. Please just let जो भी questions हो, please just let them know. And उसके बाद भी we'll keep on talking about acne things. हाँ, जो भी topic में चीजें आएंगी, we'll definitely discuss it around. Okay, we'll definitely take them up. Okay, so I think Kaneez ने मेरे से question किया था कुछ टाइम पहले. I'll take that. ओके, स्किन सेंसिटिव होती है तो कौन से परसेंटेज तक लैक्टिक एसिड यूज कर सकते हैं? ओके, सी लैक्टिक एसिड ना आपका जो प्रोफेशनली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्सनल यूज के लिए या फिर कॉस्मेटिक में जो आ रहा है, नहीं, प्रोफेशनली जब हम बात करते हैं तो प्रोफेशनली लैक्टिक एसिड जो आपका स्टार्ट हो जाता है ना, वो 20% से स्टार्ट हो जाता है। 20%, 40%, 50%, 80% तक भी आता है, 80% तक भी आता है। ठीक है, दो चीजें आपको पता है, स्किन सेंसिटिव है तभी आप लैक्टिक एसिड करोगे, है ना। दो चीजें जो आप लैक्टिक एसिड में अगर करते हो तो बहुत अच्छा, मतलब रिजल्ट भी अच्छा आएगा, प्लस आपको कभी भी ना परेशान नहीं होना पड़ेगा, तंग नहीं होना पड़ेगा, या आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। पहला, जो भी परसेंटेज आपको रखना है ना, इन बिटवीन रखो, 80% तक जाने की जरूरत नहीं है, और 20% में उतना खास रिजल्ट आएगा नहीं, तो कीप इट समवेयर अराउंड 40-45% वाला ले लो, बेस्ट है। ठीक है, अब सेकेंड गोल्स कि अच्छा, बट ये स्टिल ये भी तो हाई परसेंटेज, हम सेंसिटिव स्किन में यूज करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। उसका अच्छा सोल्यूशन मैं बता देती हूँ, जेल फॉर्म में ले लो। ठीक है, लिक्विड में मत लो, जेल फॉर्म में आते हैं। अगर आप अच्छी ब्रांड, देखो केमिकल पील्स का ना, प्लीज गाइस, है ना, अंडरस्टैंड दिस थिंग, केमिकल पील्स को ना बहुत ही लाइटली या बहुत ही लेट गो एटीट्यूड के साथ नहीं लेना है। केमिकल पील बर्न्स करते हैं, वी हैव सीन इट, बहुत खराब बर्न्स होते हैं, है ना, बहुत लंबा चलते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं आप। तो ऐसे में व्हाट योर ब्रिंग्स टू अ कंक्लूजन, ब्रांड्स यूज करो, गुड ब्रांड्स यूज करो, अच्छी ब्रांड्स। ठीक है, अच्छी ब्रांड्स यूज करो फॉर द केमिकल पील्स, जिससे कि आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिले और आपको पता हो कि क्या रिजल्ट आएगा, या ठीक है मेरा कंट्रोलिंग हो, मेरे हाथ में मैनेजिंग हो। इसीलिए आई एम टेलिंग यू कि लैक्टिक एसिड को आप जेल फॉर्म में ले लो। जेल में लोगे तो ऑब्वियसली उसका जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा एक आपको मैनेज करने का, उसको कंट्रोल करने का आपके पास में, इट विल बी इन योर फेवर। लिक्विड होता है तो क्या होता है ना, जैसे आपने लिक्विड अप्लाई किया तो तुरंत एब्जॉर्प्शन होकर वो तुरंत रिएक्ट आउट करेगा, तो कई बार आपको ना वर्किंग टाइम नहीं मिल पाता, आपको वो स्पेस नहीं मिल पाता, वर्किंग टाइम नहीं मिल पाता, कई बार हैजार्ड्स हो जाते हैं। सबसे अच्छा तरीका है जेल फॉर्म में ले लो, इजी रहेगा। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? डू वी हैव एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, लगता है सबको बहुत ज्यादा ही चीजें समझ में आ गई। डू वी हैव एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, व्हिच पील इज बेस्ट फॉर एक्ने स्कार्स? TCA. For the acne scar, TCA is very good.
हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टीसीए हमें करना होता है. वी हैव टू वर्क इन बेसिकली हम क्रॉस की टेक्निक में वर्क करते हैं. ठीक है. सो व्हेन वी आर वर्किंग इन द क्रॉस टेक्निक, तो ऐसे सिचुएशन में वी बेसिकली यूज टीसीए. ठीक है. तो जब हम यूज कर रहे हैं केमिकल पील जो है, तो उसमें टीसीए को यूज करते हैं हायर परसेंटेज में. अप्रोक्सीमेटली कई लोग हैं 90% टू ऊपर भी जाते हैं, बट वी प्रेफर टीसीए. जब आप करो तो 70% तक इज गुड इनफ. अगर आप क्रॉस में कर रहे हो, क्रॉस इन द सेंस यू जस्ट हैव टू अप्लाई इट ओनली ऑन द स्कार रीजन. ठीक है. तो दैट इज बेसिकली केमिकल रिससिटेशन होता है विद द ये आपका केमिकल पील का. ठीक है. मेरी एक क्लाइंट है, उनका एक्ने है, उन्हें मैंगो खा लिया, उनका एक्ने इंक्रीज हो गया मैंगो से. हाँ जी. ओके ओके ओके. सो Kaniz has asked the question. I think कई लोगों को होगा, गर्मी का सीजन चल रहा है, everyone loves mango, mangoes are in the market, so many of the people have this tendency कि मैंगो खाने से ना पिंपल हो जाते हैं. ठीक. प्रॉब्लम ये है कि मैंगो खाने से पिंपल नहीं है. देखो आज के टाइम पे ना दो इश्यूज होते हैं. मैंगो इज अ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स. हाई ग्लाइसेमिक मतलब हाई शुगर कंटेंट है. मैंगो मतलब एकदम एक्सट्रीम जो बहुत ज्यादा शुगर वाले जो फ्रूट होते हैं ना, मैंगो एक है. तो मैंगो, चीकू, ग्रेप्स, ये क्या है, ये हाई शुगर वाले फ्रूट्स हैं. तो जब कभी भी आप हाई शुगर कंटेंट लेते हो, शुगर हाई जाता है बॉडी के अंदर में, तो दैट वो इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है बॉडी का. हार्मोन ट्रिगर आउट करता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, जिसकी वजह से सिबेशियस मतलब आपकी बॉडी में ऑयल ज्यादा बनता है. ऑयल ज्यादा बनेगा तो ऑब्वियसली पिंपल होगा. मैंगो से ऐसा नहीं है कि आपने मैंगो खाए और पिंपल निकल आए, नहीं, बट शुगर कंटेंट क्योंकि उसका हाई होता है, बिकॉज ऑफ दैट शुगर आपको पिंपल प्रॉब्लम होती है. ठीक है. इसीलिए कभी भी जब भी हम पिंपल का ट्रीटमेंट क्लाइंट्स के साथ शुगर शुरू करते हैं ना, तो हम उनका शुगर कट ऑफ करते हैं. हम उनका शुगर प्रोबेबिलिटी हम कट ऑफ करते हैं, ताकि शुगर डाउन होगा तो अंदर इन्फ्लेमेशन लेवल सेटल डाउन करके हम उसका ऑयल सिक्रीशन डाउन कर सकते हैं. ठीक है. आई होप दिस वाज हेल्पफुल कनीज. ओके, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन. हमारे पास आरती का क्वेश्चन है. अगर कोई ट्रेटिनोइन यूज कर रहा हो 3-4 मंथ से पिगमेंटेशन पर, तो हम पील कर सकते हैं? ओके, पील कर सकते हो, इशू नहीं है, बट तुरंत में मत करना. ठीक है. इमीडिएट मत रखना. मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम यूजिंग, आई गिव माई एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग ट्रेटिनोइन. ठीक है. और मैं आज आई हूँ आपके पास कि मेरे को ना पील करवाना है. ठीक. अब ट्रेटिनोइन क्या है ना, फोटो सेंसिटिव है. इनको ना थोड़ा सा फोटो सेंसिटिव क्रिएट कर दे. रिजल्ट्स अच्छे हैं सब, अगर सूट कर जाए ना तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बट कई बार क्या होता है ना, आपकी स्किन को थोड़ा सा सेंसिटिव कर देता है. तो ऐसे में आपने उसकी हिस्ट्री ली, आपने कंसल्टेशन की, आपने हिस्ट्री ले ली, वेल डन, आपको पता चल गया ट्रेटिनोइन यूज हो रहा है. सो व्हाट यू विल डू, आप उसको 24 to 48 आवर्स के लिए क्लोज करवाओगे, एंड देन फिर आप क्लाइंट को बुलाओगे फॉर द पील सेशन. इमीडिएट नहीं. और अगर रुक सकते हो तो 5 से 7 दिन तो सबसे अच्छा है. बट मान लो क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं है, नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप उसका असेसमेंट करके 24 to 48 आवर्स तक, 48 आवर्स का क्लोज करके उसको बुलवा लो. उस 48 आवर्स में उसको सेरामाइड बेस मतलब मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन खूब अच्छे से यूज करने को बोलेंगे, खूब सारा लगाते रहे, यूज करते रहे, हाइड्रेशन अच्छा रखें, ये सारी चीजें, एक्टिव इंग्रेडिएंट उसके सारे क्लोज करके देन टेक देम. ओके. बट 7 डेज का अगर ब्रेक मिल सके तो बहुत अच्छा है, नहीं हो सकता तो एटलीस्ट मिनिमम 48 आवर्स का ब्रेक तो चाहिए, अगर ट्रेटिनोइन यूज हो रहा है तो. ओके. वी हैव कनीज. ओके, सारे क्वेश्चंस कनीज को आ रहे हैं. ओके. सो एक बार हम ग्लाइकोलिक 30% या लैक्टिक 30 मिक्स करके यूज किया, रिजल्ट अच्छा मिला था, बट पीआईएच फॉर्म हो गया था. ऑब्वियसली डियर, सी कनीज, प्लीज अंडरस्टैंड, ग्लाइकोलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड दोनों AHAs हैं. रिजल्ट्स भी मिलेगा, आई एम नॉट डिनाइंग, मिलेगा, क्योंकि दोनों एक्सफोलिएट करें तो एक्सेसिव एक्सफोलिएशन होगा. बट अगर उसके बाद में जब आपने पील रिमूव किया, पहली चीज तो जब आपने पील रिमूव किया और आपने न्यूट्रलाइजर का यूज नहीं किया था, तो ग्लाइकोलिक की एक्टिविटी बंद नहीं हुई. ग्लाइकोलिक एसिड की एक्टिविटी बंद नहीं हुई, वो कंटिन्यूस चलती रही. इवन पानी से रिमूव किया आपने उसके बाद भी लैक्टिक एसिड की एक्टिविटी बंद हो गई पानी से, बट ग्लाइकोलिक की बंद नहीं होती. ग्लाइकोलिक को न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, यू नीड अ न्यूट्रलाइजर फॉर इट. ठीक है. बट अगर क्योंकि आपने वो नहीं किया तो उसकी एक्टिविटी चलती रहेगी. अब वो एक्टिविटी जब चल रही है, सेम टाइम पे स्किन सेंसिटिव हो गई है,
तो अब इसके बाद में क्लाइंट कुछ भी एक्टिव इंग्रेडिएंट अगर यूज कर ले, सन में निकल जाए, कॉस्मेटिक कुछ यूज कर ले, फेस को कुछ भी टच कर ले, कुछ भी अगर क्लाइंट करता है व्हाटसोएवर, क्योंकि स्किन इतनी सेंसिटिव हो गई, और अगर पोस्ट केयर उसने नहीं प्रॉपर फॉलो किया, इट विल लीड टू पीआईएच, क्योंकि मेलेनिन एक्टिविटी चलती रहेगी। मेलानोसाइट्स जो हैं वो आपको बचाने की कोशिश में मेलेनिन ज्यादा बनाते हैं। तो जब भी ऐसा होगा कि आप उसको लगेगा, स्किन को लगेगा आपकी स्किन को डैमेज ज्यादा हो रहा है, स्किन सेंसिटिव हो गई, डैमेज बहुत हो गया है, तो वो ज्यादा मेलेनिन बनाएगी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड ऐसी कंडीशन में हाइपर पिगमेंटेशन होना, पीआईएच होना, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है पील्स के साथ। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड आप कितना परसेंटेज कौन से पील का किस पील के साथ में कब यूज कर रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लैक्टिक और ग्लाइकोलिक आप साथ यूज नहीं कर सकते, प्लीज अंडरस्टैंड इट। ओके, एजिलिक एसिड रोजेशिया के लिए यूज होता है, किस क्लाइंट को देना हो, स्टार्टिंग में कितना टाइम लगाना होता है? Kaniz, you have, I think, a lot of knowledge about the whole of the thing. You are asking me questions or you are discussing it. I'm not able to understand it. But see, एजिलिक एसिड जो है when we are talking, एजिलिक एसिड एक बहुत ही mild and it is like a very easy going kind of a peel, जो बहुत ही सूदनिंग kind of effect में आता है। पहली चीज, रोजेशिया के ऊपर पील नहीं करना है, ठीक है? यस, मेनी पीपल डू इट, लोग एजिलिक एसिड कर देते हैं, कई लोग लैक्टिक भी कर देते हैं, पीपल डू इट। बट इफ यू आस्क मी, आई हैव सीन पीपल विद लेटर कॉम्प्लिकेशंस, जैसे आपको हुआ ना ग्लाइकोलिक लैक्टिक मिक्स करने के बाद में पीआईएच जनरेट हो गया, ठीक है? सो प्लीज अंडरस्टैंड, रोजेशिया को पहले ट्रीट आउट कर लो। रोजेशिया ट्रीटेबल है ना, स्किन के बैरियर को रिपेयर कर लो, रेडनेस डाउन कर लो, चीजें सेटल डाउन कर लो, फिर उसके बाद में आपको, क्योंकि उसकी स्किन रोजेशिया प्रोन है, आपको एजिलिक एसिड पील करना है, दैट इज फाइन इनफ। बट प्लीज अंडरस्टैंड, पहले रोजेशिया थोड़ा सा कवर अप कर लो एंड देन ओनली गो फॉर इट। ओके, okay, Kaniz has asked for Kaniz, you can get the Grayskin Academy app, उस पे you will get the lecture। आपको ये AI स्किन एनालाइजर का ना हमने पूरा उस पे प्रॉपर एक अच्छा हमने प्रैक्टिकल थियोरिटिकल हमने ना पूरे क्लास किया हुआ है ना? तो हमने उस पे पूरा एक क्लास किया हुआ है, तो उसका एनालाइजर को ना यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर, एंड उस पे पूरा एक हमने अच्छे से क्लास किया हुआ है, आप वो आराम से यू कैन लुक आउट फॉर इट, एंड उस पे आपको सारी चीजें बहुत इजीली मिल जाएंगी, थ्योरेटिकल पार्ट भी मिल जाएगा एंड प्रैक्टिकल भी, है ना? आप बस ग्रेस्किन एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो एंड यू विल गेट एवरीथिंग फ्रॉम देयर। ओके, आरती ने मुझे, किसी को अगर ओपन पोज बहुत ज्यादा है, अनइवन स्किन टोन है एंड कॉमेडॉन्स है पूरे फेस पर, तो कौन सा पील कर सकते हैं? डू द सैलिसिलिक पील, है ना? देखो, अगर ओपन पोज ज्यादा है, अनइवन स्किन टोन है, एट द सेम टाइम अगर यू हैव गॉट कॉमेडॉन्स आल्सो, डू द सैलिसिलिक पील फर्स्ट। सेकेंड सिटिंग, मतलब आफ्टर क्वाइट सम टाइम, जब आप सेकेंड सिटिंग के लिए जाए, यू कैन डू द येलो पील एज वेल, ठीक है? तो आप ये एक साथ नहीं करना है, पहला एक करो, गैप में दूसरा करो, एंड देन यू कैन गो ग्रेजुअली। बट साथ में स्किन केयर चाहिए, बिना स्किन केयर के कुछ भी चीज लंबा नहीं टिकेगी, कोई भी चीज आपको बहुत लंबे टाइम तक हेल्प नहीं करेगी, है ना? परसेंटेज डिफरेंट आते हैं, येलो पील में फिक्स आता है, आप ब्रांड के हिसाब से लेते हो तो येलो पील में फिक्स आएगा एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। बट सैलिसिलिक में अगर आप लेना चाह रहे हो, यू कैन टेक अप्रोक्सीमेटली आप 20% 30% आराम से ले सकते हो, नॉट एन इश्यू, 30% तक आराम से ले सकते हो, बट कोशिश करना जेल बेस लेना। सैलिसिलिक में भी ना कोशिश करना जेल बेस लेना, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आपका वर्किंग टाइम बढ़ जाएगा, आप आराम से कंट्रोल कर पाओगे और बहुत ईजी रहेगा आपके लिए, है ना? ठीक है, ओके। समवन हैज आस्क्ड, डॉक्टर दक्षा हैज आस्क्ड, पिगमेंटेशन में कौन सी पील यूज कर सकते हैं? सी, पिगमेंटेशन इज अ वाइड इंक्लूसिव टॉपिक, क्योंकि उसमें सुपरफिशियल पिगमेंटेशन अलग है, डर्मल फेशियल डीप जो आपका पिगमेंटेशन है वो अलग है। तो जब हम एपिडर्मल पिगमेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो हम ऐसे पील्स यूज कर सकते हैं जो एक्सफोलिएशन में हमें हेल्प करे, तो ग्लाइकोलिक कैन ऑल्सो वर्क। बट अगर हम ऐसे पील्स की बात कर या पिगमेंटेशन की बात करें जो डर्मल लेयर तक चले गए हैं या डर्मल लेयर तक एम्बेडेड हैं, तो कई बार होता है कि ऐसे पिगमेंटेशन में ना हमको सिर्फ पील काम नहीं आता, हमें दूसरे ट्रीटमेंट्स भी इनकॉर्पोरेट करने पड़ते हैं साथ में, तो वी वर्क इन अ कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट देयर। तो जब वो कॉम्बिनेशन थेरेपी में हम वर्क करते हैं पिगमेंटेशन के साथ में ना, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बट उसमें पहले ये पता करना कि एपिडर्मल पिगमेंटेशन है या डर्मल है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? देन वी कैन डिसाइड कि कौन सा पील या कौन सा ट्रीटमेंट हमको यूटिलाइज करना है।
accordingly. Fine. Yes. Okay. Dr. Yogita has asked, black peel, acne and acne scar both के लिए use कर सकते हैं क्या? You can use, but black peel has got acetic acid, तो acne में बहुत अच्छे results हैं, very good results. ठीक है. स्कार में भी आप कर सकते हो, बट जो रिजल्ट स्कार के अंदर, एक्ने स्कार के अंदर में क्रॉस टेक्निक का टीसीए के साथ है, वो ब्लैक पील का नहीं है ना डॉक्टर योगिता? प्लीज अंडरस्टैंड, ब्लैक पील वर्क्स ब्रिलियंटली, बहुत अच्छा वर्क करता है पिंपल्स के साथ, एक्टिव एक्नेस के साथ. बट जब हम एक्ने स्कार की बात करते हैं तो करने के लिए मना नहीं है कि अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, यू डोंट हैव टीसीए, तो आप ब्लैक पील कर लो. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको स्कार के अंदर में रिजल्ट चाहिए, गो फॉर टीसीए, है ना, वो बेस्ट रिजल्ट वर्क करेगा. ठीक है. एनी अदर क्वेश्चंस, एनीवन, और विल सम अप. ओके. ये बहुत ही ना आई विल से बहुत ही कंफ्यूजिंग एंड बहुत ही पेंडुलम काइंड ऑफ क्वेश्चन है. डॉक्टर दक्षा हैज आस्क्ड कि एक्ने स्कार में अगर हम क्रॉस टेक्निक के साथ टीसीए करते हैं तो एक्ने स्कार कितने टाइम में गायब हो जाएंगे या रिमूव हो जाएंगे, सॉरी. सो प्लीज अंडरस्टैंड, एक्ने स्कार इज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द स्किन. ठीक है. एक्ने स्कार को आप गायब नहीं कर सकते, यू कैन नॉट रिमूव देम, प्लीज मार्क माई वर्ड्स. हाँ, आप उसकी विजिबिलिटी, आप उसका दिखना, उसका अपीयरेंस, आप उसकी चीजों को लाइट कर सकते हो. यू कैन मेक इट लुक लेस, यू कैन मेक इट लुक लाइट, यू कैन नॉट मेक योर स्किन क्लीन अगेन. एंड प्लीज मेक श्योर जब आप पेशेंट के साथ कंसल्टेशन में बैठे, आप उसको ये वन ऑन वन एजुकेट करके बताएं कि क्यों नहीं हो सकता, बट यस, हम इसका दिखना, हम इसका अपीयरेंस डाउन कर लेंगे. अब रही बात कितने सिटिंग्स में हम उसका अपीयरेंस डाउन कर सकते हैं, दो चीजों पे निर्भर करता है. पहला, क्लाइंट का स्किन केयर और पोस्ट केयर कैसा चल रहा है, हाउ सीरियस इज द क्लाइंट टेकिंग केयर ऑफ द स्किन. ठीक है. सेकेंड, हाउ बेसिकली कितने पुराने स्कार्स हैं, पुराने इन द सेंस कौन से टाइप, किस टाइप का स्कार है और कितना पुराना स्कार है, बॉक्स स्कार है, आइसपिक स्कार है या फिर रोल्ड स्कार है. तो कौन सा स्कार है उसके अकॉर्डिंग भी डिपेंड करेगा कि कितने सेशंस में नंबर ऑफ स्कार्स कम दिखेंगे. ठीक है. स्कार अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है. स्कार अपने आप में, उसके भी अलग अलग ट्रीटमेंट्स हैं, फ्रॉम ये केमिकल पील्स, टीसीए क्रॉस से लेके सब्सिजन से लेके फिलर्स तक, मतलब क्या कुछ नहीं आता उसके अंदर में. सो इट्स अगेन अ वेरी बिग टॉपिक, है ना. सो डॉक्टर दक्षा, प्लीज अंडरस्टैंड, एक्ने स्कार में क्रॉस टेक्निक वर्क्स वेरी वेल, बट कितने टाइम में रिजल्ट आएगा ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ स्कार के ऊपर. सेकेंड, क्लाइंट कितना टेक केयर कर रहा है फॉर द पोस्ट केयर एंड स्किन केयर. गॉट द पॉइंट? एनीवन एल्स? यस डॉक्टर दक्षा. एनीथिंग एल्स? कोई और क्वेश्चन? एनीवन एल्स फॉर? anyone for any other question? See, basically guys, please understand one thing. See, I'm telling you, एक्ने अपने आप में ना एक बहुत वास्ट टॉपिक है, इंटरनल एक्सटर्नल, बहुत सारी चीजों को टेक केयर करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, स्पेशली विद द फीमेल्स. आपके हार्मोन्स चेंज होना, पीसीओडी का प्रॉब्लम होना, यहाँ तक कि आपका इवन मेनोपॉज के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे, इवन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस कैन ट्रिगर एक्ने. आज के टाइम पे बॉयज में भी ऑल्सो वी आर सीइंग एडल्ट एक्ने बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ द स्मोकिंग एंड इवन मेनी अ टाइम्स बिकॉज ऑफ द अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंड डाइटरी हैबिट्स. करेक्ट. तो प्लीज मेक श्योर कि कभी भी आपके पास कोई क्लाइंट एक्ने को लेकर आ रहा है तो सिर्फ उसको एक ट्रीटमेंट, एक केमिकल पील लगाकर नहीं भेज देना है. सिट विद द क्लाइंट, हैव द होल कंसल्टेशन, पूरी की पूरी कंसल्टेशन लो, साथ में बैठो, उसकी जड़ पता करो कि पिंपल होने का मुख्य कारण या मेजर कारण क्या है. अगर आप उसको इंटरनली हेल्प कर सकते हो, चाहे वो डाइट के बेसिस पे हो, न्यूट्रिशन बेसिस पे हो या व्हाटसोएवर, प्लीज हेल्प देम. अगर आपके पास वो नॉलेज नहीं है तो प्लीज कनेक्ट विद सम, ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट हो. न्यूट्रिशनिस्ट बहुत हैं आजकल, डाइटिशियंस बहुत हैं, यू कैन गेट, आप उनके साथ में कनेक्ट हो सकते हो एंड ऐसे क्लाइंट्स को आप साथ में कंबाइनली ट्रीट कर सकते हो. ऐसे में क्लाइंट का ट्रस्ट भी बढ़ेगा, क्लाइंट आपके पास खुश भी रहेगा, एट द सेम टाइम उसे रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे. क्योंकि इंटरनल एक्सटर्नल जब दोनों तरीकों से आप क्लाइंट को ट्रीट करोगे, जब दोनों वेज में आप क्लाइंट को हेल्प करोगे, तब जाके उसको मिलेगा लॉन्ग लास्टिंग एंड हेल्दी रिजल्ट्स. आप क्विक फिक्स में लगे रहोगे, तुरंत तुरंत में लगे रहोगे या उसको मैजिक करने के मूड में रहोगे तो नहीं होगा.
नाउ मेजर थिंग, हमने आज सिर्फ एक्ने के अंदर में ना हमने सिर्फ केमिकल पील्स की बात की, इसीलिए वी हैव ऑल दिस काइंड ऑफ कि और क्या कर, तो और क्या में एक्ने के अंदर में आप कार्बन लेजर फेशियल्स भी कर सकते हो, आप हाइड्रा फेशियल्स भी कर सकते हो, इवन नॉट एन इश्यू, आप केमिकल पील्स कर सकते हैं एक्ने के अंदर, वी कैन डू इवन फोटो फेशियल्स कैन बी डन फॉर द acne patients, we can we can even do LED masking for the patient, we can do high frequency treatments for the patients. Okay, there are multiple other treatments that are available out there to help the acne client. कई बार होता है कि हमें कॉम्बिनेशन एक पूरा क्रिएट करना पड़ता है, एक पूरे पैकेज, एक पूरे कंबाइन इफेक्ट क्रिएट करना पड़ता है क्लाइंट के लिए, करेक्ट। सो आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, आप ग्रे स्किन एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो आराम से, एंड प्लीज मेक श्योर कि उसके अंदर में हमने सारी चीजों, सारी ट्रीटमेंट्स के बारे में वर्क किया है। आरती, इट इज फॉर यू एज वेल, आप जो पूछ रहे हो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, प्लीज डाउनलोड ग्रे स्किन एकेडमी ऐप, एंड उसके अंदर में हाई फ्रीक्वेंसी हो, कार्बन लेजर हो, पील्स हो, डिफरेंट पील्स हो, हमने हर एक के बारे में बहुत ही डिटेल्ड एंड वर्कआउट भी किया, उसमें हमने प्रॉपर प्रैक्टिकल आपको दिखाया है, प्रॉपर हैंड्स ऑन करते हुए हमने दिखाया, प्रॉपर थ्योरेटिकल पार्ट दिखाया, एवरीथिंग हैज बीन टोल्ड इन अ वेरी 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 डिटेल्ड फॉर्म। उसके बाद भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज, कोई भी डाउट्स रहते हैं, इवन अगर आप ऑनलाइन आप हमारे साथ जुड़ते हैं, यू गेट अटैच्ड विद ग्रे स्किन एकेडमी ऐप के साथ में आप हमारे साथ जुड़ते हो, हम आपको व्हाट्सएप रिप्लाईज एंड इवन अ सपोर्ट इज ऑलवेज प्रेजेंट फॉर यू, वो हम आपको हमेशा करते हैं, करेक्ट। नाउ डॉक्टर दक्षा हैज आस्क्ड, आफ्टर पील फेस वॉश कब यूज कर सकते हैं? आफ्टर पील फेस वॉश एटलीस्ट गिव अ 24 आवर्स ब्रेक, 24 घंटे का एक ब्रेक रखो उसके बाद में, बट प्लीज अंडरस्टैंड फेस वॉश और फेस क्लेंजर में फर्क होता है, स्किन सेंसिटिव होती है, तो इनिशियल 7 से 10 दिन क्लेंजर यूज होगा, फेस वॉश यूज नहीं होगा, ठीक है। Okay, Arti, I hope this was helpful, and Dr. Daksha, I hope this was helpful to you. And I had a wonderful class. I had a lot of good students. काफी अच्छे questions भी आए, and I hope ये पूरा session आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहा होगा, and you learned something new. आपको काफी सारी चीजें पता चल, and if you actually learned something, just chat में, just put some good words about, and just take basic review. क्या आप इस तरीके के और भी कोर्सेज चाहते हैं? क्या आप चाहते हो हम इस तरीके से लाइव आए, नहीं आए, हम क्या करें? ओके आरती, थैंक यू आरती, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स। सो इफ यू लाइक इट, इफ यू डिडंट लाइक इट, जो भी है व्हाटसोएवर, प्लीज जस्ट पुट अ फीडबैक ऑन द चैट बॉक्स। आप एक चैट बॉक्स पे फीडबैक डाल दो, ताकि इट विल गिव अस, वो हमें भी हेल्प करेगा टू इम्प्रूव, एंड इट विल ऑल्सो मेक मी ऑल्सो थिंक अबाउट कि अच्छा हमें इस तरीके के कोर्सेज और लाने चाहिए, हमें इस तरीके की लाइव क्लासेस और करनी चाहिए, सो लाइव सेशंस और आए। अगला टॉपिक आप क्या चाह रहे हो कि हम और लें जिससे आपको और मजा आए? एंड यस, आई एंजॉयड दिस क्लास, एंड इफ यू टू, तो प्लीज चैट बॉक्स में जस्ट लीव सम कमेंट्स, एंड इट विल ऑलवेज एनकरेज अस मोर, करेक्ट। आई होप दिस वाज हेल्पफुल गाइस, एवरीवन एंजॉयड। सो हम जल्दी ही नए कोर्स के साथ आएंगे, विल कम बैक अगेन विद अ न्यू कोर्स, एंड वी विल मेक श्योर, yes, thank you Dr. Daksha, thank you so much. Okay Aarti, we'll definitely take that in mind कि pigmentation and melasma पे भी कोर्स हो। I think Dr. Daksha also wanted कि pigmentation को लेके थोड़ा बहुत चीजें clear off हो। Yes Kanis, okay, thank you so much, I hope करेक्ट। ओके, वील डेफिनेटली मेक श्योर कि हम इस तरीके के और भी लाइव सेशंस आप लोगों के लिए लेकर आए, एंड यू एंजॉय इट। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड ग्रे स्किन एकेडमी ऐप, प्लीज वो डाउनलोड कीजिएगा। काफी सारे क्वेश्चंस, क्वेरीज, एंड इवन हो सकता है कुछ ऐसे कोर्सेज जो आप करना चाह रहे हो बहुत टाइम से, बट टाइम की वजह से, या हो सकता है कि कंफर्ट की वजह से, या हो सकता है अपने काम की वजह से आप नहीं टाइम निकाल पा रहे हो, नहीं हो पा रहा हो, तो ऑनलाइन काफी सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आप अपने टाइम के हिसाब से, आप अपने टाइम के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से घर पे बैठ के आराम से उन्हें पढ़ सकते हैं। आपको एक कंप्लीट थॉरो उसमें थ्योरेटिकल पार्ट हम देते हैं, प्रैक्टिकल पार्ट हम दिखाते हैं, ताकि चीजें आपको क्लियर रहें। तो प्लीज डाउनलोड ग्रे स्किन एकेडमी ऐप, एंड उसके अंदर भी यू आर गोइंग टू एंजॉय ईच एंड एवरी कोर्स आई एम टेलिंग यू, करेक्ट। होप दिस वाज हेल्पफुल टू यू गाइज, टेक केयर, बाय, विल मीट सून अगेन, बाय बाय।